Hello friends, welcome to JK Shah online classes. This is Dr. Yogesh Patil. In this video, we are going to start with the basic introduction to financial management. Now, as far as financial management is concerned, from exam point of view, let me give you some idea about this subject, just an overview. If you are planning to appear for CA Enter examination, then from exam point of view, weightage of this subject is 60 marks. Means total weightage of FM and economics is 100 marks, and out of that 100 marks, FM carries only 60 marks weightage. This subjects बहुत बच्चे बोलते भी हैं, बहुत students बोलते भी हैं, this subject is very boring. But according to me, it's not boring, it is very scoring. Let me give you an introduction to financial management. Now, if you check this particular subject, then financial management की एक बात है that financial management subject is new to all of you. Now, very first, whenever you started with commerce studies, that time commerce studies में आपको बहुत सारे account related subjects थे. Now, financial accounting, management accounting, cost accounting, ऐसे आप लोगों ने सुना रहेगा. But this subject is totally new for you. Now, if you check the name of this subject, there are two parts. Now, this subject can be divided into two parts. First part of this subject is finance, and second part of this subject is management. Now, finance and management, let me elaborate this both the terms widely. Now, as far as financial term is concerned, this is not new for you. It is very simple term which we generally use in our routine life. Now, as far as finance is concerned, whenever you are transacting with money, like जब भी आप पैसे से कोई भी transaction perform करते हो, कोई भी activity perform करते हो, like if you are performing purchases का activity, whatever thing you are purchasing, if you are selling something, if you are exchanging commodities with money or money's worth, ये सारे financial terms जो है ना, ये सारे terms को हमें करना है इसमें manage. Now, try to understand this concept thoroughly. Now, as far as this financial management is concerned, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंस की, और हमेशा रूटीन लाइफ में हमेशा हम लोग फाइनेंस को मैनेज करते हैं. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट family, if you are talking about joint Hindu family firm, if you are talking about sole proprietorship, partnership firms, joint stock companies, and n numbers of business organizations which are available in the market, each and every business organization as well as individual deals with the financial terms on daily basis. अगर फाइनेंशियल टर्म्स की बात करते हो तो चलो और थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल थिंग्स. Now, after becoming chartered accountant or after completing your graduation or after completing your education, आपका basic objective क्या रहेगा? सोसाइटी में स्टेटस आना चाहिए, डिग्रीज अर्न करनी है, रिस्पेक्ट है, और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है अच्छा खासा पैसा कमा के लाइफ को कंफर्ट जोन में लेके आना है. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउअडेज. Now, for earning money, you are putting so many of hours का मतलब आप लोग दिन के कितने घंटे पढ़ाई करते हो. You are investing your time to secure your future. In short, अभी फ्यूचर में जाके पैसा कमाने के लिए तीन तरह के एक्टिविटीज आप लोग परफॉर्म कर सकते हो. नाउ, तीन तरह के एक्टिविटीज मीन्स व्हाट? नाउ, एज फार एज इंडियन कल्चर इज कंसर्न, 80 to 90% of Indian crowd starts with very famous source of earning that is called as employment. सुना है ये आप लोगों ने कभी employment? Whenever you are talking about employment, ये employment में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है. पहली पार्टी होती है एम्प्लॉयर और दूसरी पार्टी होती है एम्प्लॉई. एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए काम करता है एंड मंथली बेसिस उससे जो पैसा मिलता है, दैट पैसा, दैट रिवॉर्ड विच इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड एज सैलरी. सैलरी आपको मिलेगा फाइनेंशियल टर्म्स में. फाइनेंस आ गया, आपको सैलरी कितनी कमानी है, सैलरी आने के बाद कहाँ स्पेंड करनी है, कितना सेविंग करना है, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर योर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस. सेकेंड थिंग, चलो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सैलरीड नहीं बनना पसंद है. मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, मैं खुद का कुछ करना चाहता हूं, और उसके लिए वो अच्छी खासी पढ़ाई करके एक हाथ डिग्री लेते हैं. से फॉर एग्जांपल आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए,
आपने सीए का स्टडीज कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर दिया एंड यू स्टार्टेड विथ योर ओन कंसल्टेंसी। अगर आप ओन कंसल्टेंसी स्टार्ट करते हो आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको जो बोला जाएगा उसका नाम होगा प्रोफेशनल। नाउ whenever you're talking about professionals, ये professionals जो होते, they are the highly qualified persons who render services and उस सर्विसेज के बदले उन्हें जो पैसा मिलता है, दैट पैसा इज कॉल्ड एज फीस। हम लोग सैलरी हो या फीस हो कौन से टर्म में कंप्यूट करते हैं? फाइनेंशियल टर्म्स। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो इन इंट्रोडक्शन पहले तो मैंने पूरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है। आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस ओनली वन थिंग, फाइनेंस। जहां जहां पैसा होगा वहां वहां ये सब्जेक्ट आपको जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम तो आने ही वाला है। So that's why this is very interesting and scoring subject. 60 marks का पेपर होगा, लेकिन मार्क्स से ज्यादा प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज कंपैरेटिवली हाई। सो पहला पैसा कमाने का तरीका जो है, दैट वन इज योर एम्प्लॉयमेंट, वेर यू आर गोइंग टू अर्न सैलरी। अगेन अगर आप लोगों ने सीए किया, सीएस किया, कंपनी सेक्रेटरी, देन एमबीए फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूशन किया, फिर अगर अदर बैकग्राउंड के देखोगे तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, दिस ऑल फेलोज आर कॉल्ड एज प्रोफेशनल। और ये प्रोफेशनल लोगों को जो पैसा मिलेगा, दैट पैसा इज कॉल्ड एज फीस। नाउ वन मोर सोर्स इज देयर जहां से आप लोग पैसा अर्न कर सकते हो, एंड लॉट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सोर्स। अब ये जो रिस्क की बात कर रहा हूं, रिस्क लेने के बाद ऑब्वियसली प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा, एंड दिस पर्टिकुलर सोर्स विच इज रेयरली यूज्ड इन इंडिया इज कॉल्ड एज योर बिजनेस। और बिजनेसमैन को जो पैसा मिलता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट ही कैलकुलेट ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट भी पैसा है, फीस भी पैसा है, सैलरी भी पैसा है, ये हर एक चीज कम्स अंडर फाइनेंस। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट पैसा, फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो। नाउ ये जो इनफ्लो है एंड आउटफ्लो, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आर यू गोइंग टू रैंडमली यूटिलाइज योर मनी? ऐसे ही पैसा कमाओगे, ऐसे ही खर्चा करोगे कि सर्टेन प्लानिंग इज नीडेड? ऑब्वियसली you all will give one answer only, that sir planning is must। पढ़ने के लिए प्लानिंग चाहिए, करियर के लिए प्लानिंग चाहिए, फैमिली बनाने के लिए प्लानिंग चाहिए, तो पैसा भी तो बर्बाद नहीं करना है, उसके लिए भी तो प्लानिंग चाहिए, एंड दैट प्लानिंग इज कॉल्ड एज योर मैनेजमेंट। So whenever you are managing your sources, whenever you are managing your inflows and outflows, that entire stuff is covered under financial management. Each and every chapter of financial management deals with management of money, nothing else. This is that easy. One more thing I would like to introduce here, जब आप लोग मैनेजमेंट की बात करते हो, होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। फाइनेंस टर्म में क्या क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन, फाइनेंस टर्म में सारे के सारे पैसे से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। जहां जहां पैसा आएगा वहां वहां फाइनेंस है, और जहां जहां फाइनेंस है वहां वहां आपको वो मैनेज करना जरूरी है। नाउ लेट्स मूव लिटिल फॉरवर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप लोग मैनेजमेंट की बात करते हो, मेनी अ टाइम in classroom lecture also, when I ask this particular question to all the student, what do you mean by management, what is the meaning of management, student give one answer। वो माइकल वाज का डेफिनेशन जो होता है ना टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ, वो मैनेजमेंट का मीनिंग ये लोग ना लेके आते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। 101% वो भी मैनेजमेंट ही है। यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। Now, according to discussion till this point, management means planning about the financial things. अभी ये प्लानिंग जो है कौन करता है, दैट मैटर्स अ लॉट। इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्वियसली आप ही करोगे, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मैनेजमेंट डिफर हो सकता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। जब आप लोग बात करते हो सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सुना है ये? सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज sole proprietorship। Now sole trading concern का एक इंपॉर्टेंट फीचर आपने पढ़ा रहेगा, there is only one owner who is going to bear all the losses, who is going to enjoy all the profits। लिमिटेड कैपिटल होता है, ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। सो यहाँ पे ये जो पर्सन है, he is the owner of the business as well as manager of the business। So you can say management of sole trading concern is in the hand of sole trader itself। इसके बाद और एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने सुना रहेगा शायद से, which is called as HUF। HUF is also called as Joint Hindu Family Business।
HUF is Hindu Undivided Family, which is also termed as Joint Hindu Family Business. In this particular organization of business, आपके business का owner होता है कर्ता and co-partners, ऐसा कुछ सुना रहेगा आपने. ये जो करता है यही बिजनेस मैनेज करता है, मींस देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ओनर इज करता, मैनेजर इज करता, ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस हिज कैपिटल अलोंग विद को पार्टनर शेयर और बाद में इज गोइंग टू कंडक्ट हिज बिजनेस एक्टिविटीज. दैट्स इट. और एक टर्म आप लोगों ने सुना रहेगा. नाउ नेक्स्ट टर्म जो आप लोगों ने सुना था वो था आपका फेवरेट वाला पार्टनरशिप फर्म. आफ्टर प्रोप्राइटरशिप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप लोगों ने और एक टर्म सुना, दैट वन इज पार्टनरशिप फर्म. एंड इन दिस पार्टनरशिप फर्म देयर आर मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व. मल्टीपल इंडिविजुअल्स का मतलब है व्हेन टू और मोर पर्सन स्टार्ट सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, जो साथ में आके एक ही ऑब्जेक्टिव से बिजनेस स्टार्ट करते, दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म. ओनर्स कौन होते हैं इसके? पार्टनरशिप फर्म के ओनर्स होते हैं पार्टनर्स एंड उसके मैनेजर्स भी होते पार्टनर्स. अगर इसमें भी देखोगे तो ओनर्स एंड मैनेजर्स आर सेम. अभी क्वेश्चन आता है दिमाग में, अरे सर तू कब से बोलते जा रहा है, ये करना क्या है, एक्सप्लेन, तुझे कहना क्या चाहते हो भाई? मैं ये कहना चाहता हूं कि एज फार एज दिस थ्री फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न, इन दिस ऑल केसेस ओनर एज वेल एज मैनेजमेंट आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम. सर ये डिफर कहां पे होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये डिफर होता है केस में एंड दैट केस इज कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द जॉइंट स्टॉक कंपनीज कैलकुलेशन. ट्रस्ट मी गाइज, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी ना, आपके दिमाग में दो तीन ना उसके फीचर्स आने चालू हो जाते हैं. पहला फीचर आता है कॉमन सील, परप्यूचुअल सक्सेशन, ये सारे के सारे, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड कैपिटल, ये सब कुछ आएगा दिमाग में. जॉइंट स्टॉक कंपनी थॉरोली आपने पढ़ा था 12th स्टैंडर्ड में. नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर बात करते हो, इसके ओनर्स जो होते हैं, होप यू नो हु आर द ओनर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओनर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स और मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. याद है, board of director is also called as management of the company. Now why there is a separation? See, whenever you are going to invest your money in business, आप लोग हो जाते हो इन्वेस्टर. इन्वेस्टर्स को ही बोला जाता है शेयर होल्डर बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन शेयर्स ऑफ कंपनी. इन सिंपल केस इसे ऐसा बोला जाता है, यू आर गोइंग टू परचेज द शेयर, यू आर गोइंग टू होल्ड द शेयर. दैट्स व्हाई आप लोग कहलाओगे शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं. ये सारे के सारे लोग बिजनेस मैनेज करने के लिए नहीं जाते हैं. इनमें से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो बिजनेस मैनेज करते हैं एंड उस ग्रुप को, उस कमिटी को, उन हायर लेवल अथॉरिटीज जो बिजनेस मैनेज करेंगे उन्हें बोला जाता है मैनेजमेंट. सो इन दिस पर्टिकुलर सीए इंटर लेवल you will be having management which is related to company and you will be taking decisions related to finance which is raised and invested by the company. Hope I am clear. Finance का मतलब बताया जहां जहां पैसा होगा. इंडिविजुअल भी मैनेज कर सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी मैनेज कर सकता है, पार्टनरशिप, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, हर जगह पे मैनेजमेंट जरूरी है. लेकिन सीए इंटर में आप लोगों को मैक्सिमम मैनेजमेंट जो करना है वो किसका करना है? जॉइंट स्टॉक कंपनी का. और यहां पे मैनेजमेंट का मतलब होता है हायर लेवल अथॉरिटीज. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हायर लेवल अथॉरिटीज वगैरह आपने तो समझा दिया, लेकिन ये हायर लेवल अथॉरिटीज जो है ये करते क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो लेट्स कम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ये हायर लेवल अथॉरिटीज करते क्या है? ये हायर लेवल अथॉरिटीज आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस, they are not going to pass journal entries, they are not going to prepare ledger accounts, they are not going to prepare final account. ए सर सुना सुना लग रहा है, ये फाइनल अकाउंट मैंने सुना है. ये फाइनल अकाउंट आप लोगों ने सुना रहेगा 11th स्टैंडर्ड में भी, 12th स्टैंडर्ड में भी, और हर साल ये आपके आसपास घूमता रहेगा फाइनल अकाउंट. जब आप लोग फाइनल अकाउंट बोलते हो बच्चों, तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले जो अकाउंट बनाया जाता है दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज योर ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनाते हो दैट वन इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. And after profit and loss account, generally if appropriation account and other accounts are not there, every accountant prepares statement showing financial
information of the company, which is called as balance sheet. Now, in short, these are the three parts of your final account. जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके वी यूज टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता था P&L में, P&L क्लोज करके वी यूज टू कैलकुलेट दी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में हम लोग ऐड करते थे, और फाइनली जैसे ये टैली होता है वो जो हमें खुशी मिलती थी वो खुशी बहुत ही अच्छी थी. ये सारी चीज़ें बनाना, टैली करना, पोस्टिंग करना इज नॉट द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट. नाउ यू ओनली टेल मी, बच्चों हम लोगों ने डिस्कस क्या किया? मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? एम्प्लॉई? नो. Management means what? Workers? No. Management means what? They are elected representatives. They are higher level authorities of the business organization, जो business के decisions लेने का power रखते हैं. Now business के decision लेने की अगर बात करते हो तो decision making authority जो है वो board of director है. डिसीजन लेने के लिए उन्हें एक चीज अच्छे से करनी पड़ती है, दैट वन इज कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कंक्लूजन्स ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, इंटरप्रिटेशंस देने पड़ेंगे. सर क्या बोलते जा रहा है? मैंने बोला मैनेजमेंट का ड्यूटी होता है एनालाइज करना. सर किसे एनालाइज करेंगे? ओनर्स को एनालाइज करेंगे? नहीं. सर किसको एनालाइज करेंगे? मार्केट एनालाइज करेंगे? ना. वी आर गोइंग टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दिस सब्जेक्ट. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट. सर ये सब्जेक्ट में करना क्या है? एनालाइज करना. यार क्या एनालाइज करना है? सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर वो कौन बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट ने बनाया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए जो बंदा यूज करेगा उसको बोला जाएगा मैनेजमेंट. सो ये मैनेजमेंट टॉप लेवल अथॉरिटीज का है जो कौन से डिसीजंस लेने वाले हैं? फाइनेंशियल डिसीजन. सो दिस इज द you can say conclusion of this particular name. Financial management is decision making subject, and which decision we are going to make related to the finance. Hope you understood this. अभी अगर मैंने एक वर्ड मैंने बोला था, अगर आपने सुना रहेगा तो उस वर्ड पे थोड़ा सा मैं लेक्चर एक्सटेंड करना चाहूंगा. मैंने बोला था एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. FM. बच्चों कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है ये? 60 मार्क्स. 60 मार्क्स में थोड़े से टॉपिक पढ़ने हैं, बोरिंग नहीं है, स्कोरिंग है, वेरी इजी सब्जेक्ट. इजी है, लेकिन इसमें करना क्या है? डिसीजन मेकिंग. डिसीजन लेने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लोअर लेवल अथॉरिटीज के हायर लेवल अथॉरिटीज. हायर लेवल अथॉरिटीज जो है वो क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे. क्या एनालाइज करेंगे? फाइनल अकाउंट एनालाइज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के लिए, फाइनल अकाउंट एनालाइज करने के लिए आपके पास रेडीमेड फाइनल अकाउंट होना जरूरी है. सर फाइनल अकाउंट जब आप बोलते हो तभी मुझे सिर्फ यही याद आता है, ऐसा कुछ तो आप लोगों ने देखा रहेगा. You always prepare final account by using this particular format, and this format is called as T format. Two more names are there. It is also called as horizontal format, and this format is also called as conventional format. तीन नाम. First one T format, second one is horizontal format, third one is conventional format. चलो इसका नामकरण कर देते हैं. इस अकाउंट के ऊपर मैंने हेडिंग लिखा ट्रेडिंग अकाउंट. ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. नाउ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वेरी बेसिक एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक. ऐसे कुछ लिखते हो आप लोग. ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद आपका नेक्स्ट एलिमेंट होता है परचेजेस. ये परचेजेस में से इमीडिएटली याद आने वाला चीज सर रिटर्न माइनस होता है. चलो रिटर्न भी माइनस कर दिया. परचेस रिटर्न माइनस करने के बाद नेक्स्ट चीज जो होती है ना, दैट वन इज कॉल्ड एज योर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस. वही ट्रेडिंग में लिखते हैं हम लोग. इसे अंडरलाइन करके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं आपको याद रहेगा. फैक्ट्री एक्सपेंस में आप लोग रिकॉर्ड करते थे वेजेस. आप लोगों का एक फेमस आइटम जो फैक्ट्री में आता था वो था आपका कैरेज इनवर्ड, और उसके बाद आप लोगों का आता था पावर एंड फ्यूल एक्सेट्रा. ये सारे के सारे फैक्ट्री रिलेटेड एलिमेंट्स हैं जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. क्रेडिट साइड में वी यूज टू रिकॉर्ड फर्स्ट सेल्स. सेल्स में से भी आप लोग माइनस करते थे सेल्स रिटर्न्स. सेल्स रिटर्न्स के बाद यहाँ पे आता था आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद फाइनली ये अकाउंट आप लोग क्लोज करते थे, और क्लोज करने के बाद इसमें एक बैलेंसिंग फिगर आता था. मेनियर टाइम्स यू गॉट बैलेंसिंग फिगर ऑन द डेबिट साइड, मैक्सिमम टाइम्स.
एंड दिस बैलेंसिंग फिगर वी यूज टू ट्रीट एज ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, जो आगे हम लोग ट्रांसफर करते थे P&L अकाउंट में। अभी स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो स्मार्ट बच्चे चालू कर देते हैं, सर ये फॉर्मेट तो हमको पता है, तो नया क्या पढ़ा रहा है, इसके क्रेडिट साइड में और भी चीज़ें होती है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये सारी चीज़ें, देन गुड विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ये सब कुछ लिखने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होगा। Students try to understand this is basic format of trading account and elements which I have recorded in this trading account, they are permanent elements जो हमेशा आते हैं। ये सब कुछ लिखने के बाद ये सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, आपने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, आगे भी पढ़ते रहोगे, ये सब कुछ चल रहा था, ये फॉर्मेट भी अच्छा लग रहा था। लेकिन क्रिटिक्स होते हैं जो क्रिटिसिज्म देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिक्स ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म दे दिया, भाई दिस हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कुछ भी बोलने का, ऐसे बोलने के लिए। नाउ दिस फॉर्मेट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दिस इज द कमेंट मेड बाय क्रिटिक्स, और उन्होंने बोला कि ये फॉर्मेट चलेगा ही नहीं मार्केट में। अरे यार, हम लोगों ने इतनी मेहनत करके 12th में 100 on 100 बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में लाए, यही फॉर्मेट यूज करके, टैली करके, और अभी आके ये सर बोलता है वीडियो लेक्चर में कि ये नहीं चलेगा। यार ऐसा थोड़ी ना चलता है, नॉट ऑल वे, नहीं यार ऐसा नहीं है। कुछ रीजंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट। इट ऑलवेज डेवलप्स इंप्रूवमेंट। अपना जो भी आप यूज कर रहे हो, मेथड बोलो या टेक्निक बोलो, उसको कोई क्रिटिसाइज करेगा ना, उससे बेहतर आप लोग कुछ तो डेवलप करते हो। सेम वे ये फॉर्मेट को बोला गया, दिस फॉर्मेट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी बच्चे भी पूछते हैं, सर इसमें अंडरस्टैंड नहीं हो, ऐसा क्या है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, लेट मी एक्सप्लेन दिस। Now, many students are quite comfortable with this format because they are from commerce background. गौर फरमाइए क्या बोल रहा हूँ। ये ट्रेडिंग अकाउंट उनको समझेगा जो कॉमर्स वाले हैं। अभी बहुत सारे आजकल के बच्चे आएंगे, बोलेंगे सर जो साइंस वाला है उसने साइंस लिया, उसे फॉर्मेट समझे ना समझे, मुझे क्या करना है, माई लाइफ माई रूल्स। ओ अरे नहीं चलता है ऐसे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी ना बच्चों, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बोला था जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। नाउ प्लीज ट्राई टू आंसर माई क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कंपनी का शेयर होल्डर अगर आपको बनना है, तो शेयर होल्डर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। SSC, HSC, CBSC, 12th पास कहीं से भी करो, ग्रेजुएशन, देन MBA, MCOM, एनी अदर मास्टर्स डिग्री, MBBS होना चाहिए। सर इंजीनियर कैन बिकम शेयर होल्डर, डॉक्टर कैन बिकम शेयर होल्डर, बस ये डिग्री होना चाहिए। CA बनने के बाद ही शेयर होल्डर होता है, ना ना ना, देयर इज नो क्वालिफिकेशन बार एट ऑल। शेयर होल्डर बनने के लिए क्वालिफिकेशन बार इज नॉट देयर, ओनली रिक्वायरमेंट इज अपना सपना, मनी मनी। अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन इजीली बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आपके 18 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, दोज आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। बट मैंने पूछा क्वालिफिकेशन बार, देयर इज नो एज सच क्वालिफिकेशन बार टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ एनी कंपनी। मेरे पास पैसा है, अरे बता नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा है तो आई कैन बिकम शेयर होल्डर। आपके पास पैसा है, यू कैन बिकम शेयर होल्डर। Now answer my question, can doctor become shareholder? Answer will be yes. Can compounder become shareholder? Yes. Can patient become shareholder? Yes. अरे सर क्या पूछ रहे हैं, हर कोई बन सकता है। पानीपुरी वाला can become the shareholder, सैंडविच वाला can become the shareholder, illiterate person can also become the shareholder। कोई भी पढ़ा लिखा as well as जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी shareholder बन सकता है, provided उसके पास पैसा होना चाहिए। ये shareholder लोगों की पूरे साल में एक मीटिंग होती है, एंड दैट मीटिंग इज कॉल्ड एज AGM। सुना है, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है, रोज शाम को? नहीं ना, एनुअल मीन्स व्हाट, वंस अ ईयर। ईयर में एक बार जो जनरल मीटिंग होगी जिसमें शेयर होल्डर्स को हम लोग इन्वाइट करेंगे टू डिस्कस अफेयर्स, बिजनेस अफेयर्स डिस्कस करने के लिए इनको बुलाएंगे। तो शेयर होल्डर जो ये मीटिंग अटेंड करेगा बच्चों, वो शेयर होल्डर किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, ही कैन बी फ्रॉम एनी स्ट्रीम, नॉट नेसेसरी वो कॉमर्स वाला ही हो, नॉट नेसेसरी वो CA पढ़ने वाला हो, नॉट नेसेसरी वो उसको अकाउंट्स का नॉलेज हो। शेयर होल्डर कैन बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। डॉक्टर कैन अटेंड दिस मीटिंग, इलिटरेट पर्सन कैन अटेंड दिस मीटिंग, कोई भी बंदा इस मीटिंग में आके बैठ सकता है, इंजीनियर, लॉयर, कोई भी हो।
अगर इस मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स बैठे हैं, जस्ट इमेजिन दिस सिनारियो, आप ना इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपके एनुअल जनरल मीटिंग में आपके पास बाजू में डॉक्टर बैठा है, आपके पीछे लॉयर बैठा है, राइट हैंड साइड में देखोगे तो वहां पे आपका एक सैंडविच वाला बाजू वाला आके बैठा है, दूसरे रो में चेक कर रहे हो तो वहां पे बाकी के प्रोफेशनल्स बैठे हुए, दे आर नॉट हैविंग अकाउंट्स का नॉलेज, और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर ये अकाउंट जो आपके सामने बनाया है ये एक्सप्लेन कर रहा हूं. सी हाउ दिस अकाउंट आई एम एक्सप्लेनिंग. So shareholders, this is trading account of our company. On the debit side, we have recorded opening stock followed by purchases. These are the purchases made during the year by company to satisfy the additional demands from the customer. Opening stock is recorded in the beginning because company is following FIFO, that is first in first out method of stock valuation. Returns are deducted from purchases to find out the net value of purchases. After that, we have recorded factory expenses. These are the wages paid to the workers who are working with our company on daily basis. Next one is carriage inward, transportation expense incurred by the company to bring materials into the factory. Next one is the power and fuel expenditure. On the credit side, look at the turnover of the company. Returns are deducted from that turnover. And the stock which is still lying in the go down, that one is closing stock, which is recorded on the credit side. After closing this account, look at this profitability. This is the gross profit of the company, and comparatively this gross profit is higher than our competitors. So this is very good performance of our company. अरे क्या समझेगा ये, मैं आधे घंटे बोलता रहूंगा ना तो भी ना सारे शेयर होल्डर्स को नहीं समझेगा, वीडियो लेक्चर जैसा हाल हो जाएगा. पहले 10 मिनट इंटरेस्ट से देखेंगे, बाद में बोलते ही जा रहा है ना, मैं पॉज करके रखता हूं. ऐसा होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में पॉज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, शेयर होल्डर्स में डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा. नाउ टेल मी, जो मैंने बोला वो आपको समझ में आया? बिकॉज यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम अकाउंट्स बैकग्राउंड, यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी. व्हाट अबाउट नॉन अकाउंट पीपल, क्या उन्हें ये फॉर्मेट समझ में आएगा? आपके बाजू में बोला ना डॉक्टर बैठा था, आपके बाजू में कंपाउंडर बैठा रहेगा, लॉयर बैठा रहेगा, उनकी क्या हालत होगी? डॉक्टर विल आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, अरे क्या हो रहा है ये, what this fellow is doing here, ये सर क्या एक्सप्लेन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर इज एक्सप्लेनिंग ट्रेडिंग अकाउंट. डॉक्टर विल आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विल आस्क यू क्वेश्चन, अगर ट्रेडिंग अकाउंट है देन व्हाई डॉक्टर इज रिटन ओवर देयर, ये डॉक्टर क्यों लिखा है वहां पे? तो बोलने का अरे डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, दैट इज डेबिट, वो डेबिट है, और डेबिट जो है वो डेबिट का शॉर्ट फॉर्म यूज किया है. अभी शॉर्ट फॉर्म यूज किया बोलने के बाद और टेंशन आता है. डॉक्टर विल आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फुल फॉर्म बताओ क्या है? तो आप बोलोगे ये है डेबिट की स्पेलिंग, और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है DR. डॉक्टर विल आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये R किधर से आया बता जरा मुझे. ये स्टूपिड क्वेश्चन है, हम लोग भी कभी इतना सोचते नहीं है, बट दिस आर द जनरल डाउट्स जो शेयर होल्डर के मन में आ सकते हैं. सेकेंड थिंग, ये देख के कंपाउंडर खुश हो जाएगा, बोलेगा ये तो कंपाउंडर मेरा शॉर्ट फॉर्म लिखा. इट इज नॉट कंपाउंड, इट इज क्रेडिट यार. डेबिट एंड क्रेडिट वी नो, दिस बोथ द टर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, डेबिटायर क्रेडिटायर. हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, हमें पता है, हमें पता है, कुछ लोगों को अब भी पता चला रहेगा, स्टिल बहुत लोगों को पता रहता है. लेकिन ये आने के बाद ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन नॉन अकाउंट पीपल के दिमाग में आ सकते हैं. दे विल आस्क यू नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक. तो स्मार्ट कॉमर्स स्टूडेंट कैसे आंसर देते हैं पता है? ये ओपनिंग स्टॉक का मतलब है लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक. तो डॉक्टर और बाकी के लोग पूछेंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो उसको बोलेगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक. मतलब क्या समझ के रखा है यार? आपके आंसर्स राइट है बट लॉजिकली समझो. ओपनिंग स्टॉक, नो डाउट इट वाज द लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक विच वाज लाइंग इन द गो डाउन. और ये साल जब शुरू हुआ तो बेचने के लिए हम लोगों ने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, बिकॉज पेरिशेबल प्रोडक्ट के केस में वगैरह पुराना स्टॉक पहले हम लोग क्लियर करते हैं, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक हम लोग पहले लिखते हैं. परचेजेस सेल सबको समझेगा. वेजेस मंथली देते हैं, ईयरली देते हैं, कैसे देते हैं? मंथली दोगे तो उसे बोला जाएगा सैलरी. वेजेस जो है वो डेली बेसिस पे देते हैं, इवन आवर्ली बेसिस पे भी अगर पैसा देते हो, वीकली बेसिस पे पैसा देते हो, तो दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ वेजेस. ये सबको पता रहेगा. जैसे डॉक्टर या एनी अदर पर्सन जो अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, वो आपको नेक्स्ट चीज पूछेगा ना, ये कैरेज इनवर्ड क्या है, तो दिमाग खराब होना चालू होता है. उसको बोलने का हम लोगों ने ना ऐसा बायाट किया था, रट्टा मारा था. कैरेज इनवर्ड जो है, इनवर्ड आया तो ट्रेडिंग में डालने का, ऐसा हमारे अकाउंट के सर ने बोला था. और कैरेज आउटवर्ड आया ना तो वो P&L में डालने का. दिस इज हाउ वी गेट 100 on 100 इन 12th स्टैंडर्ड. मेनी ऑफ स्टूडेंट लॉजिक वगैरह कुछ नहीं, किधर रिकॉर्ड करने का बता सर, पोस्टिंग करके आएगा. कैरेज इनवर्ड,
is transportation expense incurred to bring material into the factory. Material factory में लाने के लिए जो खर्चा होता है, that one is your carriage inward, and once your material is converted into finished goods, you are going to sell them off. और सेलिंग के लिए उन्हें मार्केट तक लेके जाना पड़ेगा. फिनिश गुड्स को फैक्ट्री से मार्केट तक लेके जाने का जो खर्चा होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज कैरेज आउटवर्ड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा. दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड आउटवर्ड इन P&L अकाउंट, and this is manufacturing related kharcha, that's why we record it under trading account. So this is what your carriage inward is. बहुत बड़ा जोक होगा जब आपका डॉक्टर, कंपाउंडर, लॉयर, फिर इलिटरेट वगैरह पर्सन आगे का अकाउंट देखेंगे जिसका नाम होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे ही यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा, दे विल आस्क यू क्रॉस क्वेश्चंस लाइक एनीथिंग. ई का मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये साइट क्यों चेंज किया यार, ये साइट क्यों चेंज किया, इसका मीनिंग भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है. एज फार एज योर P&L अकाउंट इज कंसर्न, P&L अकाउंट इज योर नॉमिनल अकाउंट. पता है अकाउंट्स पढ़े थे आप लोग, उसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ऐसा कुछ आपने पढ़ा रहेगा. योर P&L अकाउंट इज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई इट इज नॉमिनल अकाउंट. व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and losses, credit all incomes and gains. Gain stands for profit. Every profit has credit balance. That's why it is recorded on the credit side. So these are the some logics जो सबको पता नहीं रहते. सर बोलना क्या चाहता है? मैं बोलना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ड्यूटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के लिए इफ यू आर यूजिंग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, that will create havoc in the minds of shareholders because they are not from account background. वो अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, इसीलिए हमें ये सारी चीजें जो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखी थी ना, इसके बच्चों क्या क्या नाम बताए थे? T फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट एंड कन्वेंशनल फॉर्मेट. ये फॉर्मेट बाहर नहीं चलता, यही क्रिटिसिज्म आया है. लोगों ने बोला कि ये फॉर्मेट ना चल बे, हमें ये फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा. सर हॉरिजॉन्टल को हम लोग अगर चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद कौन सा फॉर्मेट बनेगा? चेंज करने के बाद जो फॉर्मेट बनता है, दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड एज वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Nowadays all the companies are using vertical format to prepare their financial statement. Not even single company is using horizontal format. This is the practicality. Bookish knowledge no doubt important hai, but whenever you are going to implement that knowledge in the market condition में बहुत रिस्क है भाई. जो पढ़ा था उसका अपोजिट कुछ तो दिखेगा, और इसीलिए एडवांस में प्लानिंग जरूरी है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो फॉर्मेट चेंज करो जो एनालाइज करने के लिए इजी होगा. सर वर्टिकल के भी ऐसे दो चार नाम बताओ ना, अच्छा लगता है, बताता हूं. वर्टिकल फॉर्मेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न फॉर्मेट. मॉडर्न फॉर्मेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई फॉर्मेट. अच्छा प्रीवियस वाले का क्या क्या नाम था याद करो. पहले मैंने बोला था उसका फॉर्मेट इज टी फॉर्मेट. टी फॉर्मेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल फॉर्मेट. कन्वेंशनल फॉर्मेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट. चलो अगर समझा है आपको तो बताओ, एनालाइज करने के लिए विच फॉर्मेट इज हेल्पफुल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? वर्टिकल. नॉन अकाउंट वालों को समझने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूजफुल होगा? वर्टिकल. कौन सा फॉर्मेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज करना पड़ेगा? वर्टिकल. वर्टिकल फॉर्मेट का दूसरा नाम क्या है? मॉडर्न फॉर्मेट. उसका तीसरा नाम क्या है? आई फॉर्मेट. सर वो होता कैसे? इंस्टेड ऑफ कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस between debit and credit, we are going to arrange them vertically, एक के नीचे एक. लाइक अगर किसी को भी ना बच्चों आप लोग ऐसा इंफॉर्मेशन करके दिखाते हो ना, लाइक मतलब बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मैंने किसी को ऐसा इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट करके दिया, एनुअल इनकम ऑफ माई कंपनी इज 1000 रुपीज, रुपीज इन करोड्स. एनुअल एक्सपेंडिचर incurred by my company is 700 rupees. आफ्टर डिडक्टिंग दिस कैलकुलेटर यूज करो, आपको मिलेगा 300, एंड 300 का बचा हुआ जो पॉजिटिव प्रॉफिट है उसे प्रॉफिट बोलते हैं. अगर बचा हुआ बैलेंस नेगेटिव आता तो ऑब्वियसली लॉस होता था, बिकॉज ये एक्सपेंसेस आपके इनकम से ज्यादा होते थे. किसी को भी समझेगा. नाउ टेल मी, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन 1000 minus 700 equals to 300, accountancy knowledge is required? Not at all required.
कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी नॉलेज की, किसी को भी आप लोग समझा सकते हो। अगर किसी ईयर में आपका ये हो गया, मतलब हो गया सत्यानाश, इसको बोला जाता है प्रॉफिट ना, 6,000 का प्रॉफिट कमाया अरे यहाँ पे 6,000 रुपीज आपका नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव चीज जो है इसे आप लोग बोलोगे लॉस। इट इज दैट सिंपल, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज वर्टिकल। एंड एडवाइजेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये है कि फॉर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग डेटा इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, वी शुड एक्सप्रेस इट इन वर्टिकल फॉर्मेट। सर बस एक रीजन के वजह से चेंज करेंगे? नहीं, और भी ड्रॉबैक्स है। मैंने सिर्फ एक ड्रॉबैक आपके साथ डिस्कस किया, दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर नॉन अकाउंट पीपल। इसके और ड्रॉबैक है, पहला तो हो गया, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि दिस फॉर्मेट प्रोवाइड्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या? अगर आप लोग P&L अकाउंट देखोगे तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप लोग स्टार्ट करते हो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन से, फॉलोड बाय अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में वी रिकॉर्ड ऑल इनकम्स बच्चों। डेबिट साइड पे वी रिकॉर्ड हियर to salary, to rent, to bad debts, to depreciation, to interest, etc. इसमें आप लोग ये भी लिखते हो लॉस बाय फायर, इसमें आप लोग ये भी लिखते हो डोनेशन एक्सेट्रा, ये सब कुछ लिख देते हो। लेकिन मुझे बताओ इसमें से कितनी चीजें जो है वो बिजनेस से रिलेट करती है? अभी अगर बोलोगे सैलरी इज रिलेटेड टू बिजनेस, डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू बिजनेस, वेदर योर लॉस बाय फायर एंड डोनेशंस आर रिलेटेड टू बिजनेस, दे आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, then why to record them under business expenditure? P&L gives you summary of all the expenses and incomes. इतना income आया, इतना expense गया, इतना net profit बचा. Classification is not available with us. How much is our business profit? How much we have earned by performing non-business operations? ये आपको पता नहीं चलता है। यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड करते हो लाइक बाय रॉयल्टी रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव करना इज नॉट रेगुलर बिजनेस। यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड करते हो बाय कमीशन रिसीव्ड, अरे कमीशन कमाना अपना रोज का बिजनेस है क्या? अगर आप लोग एजेंसी चलाते हो तो कमीशन आपका रोज का इनकम हो जाएगा, बट सेल्स से अगर स्टार्ट किया है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, कमीशन उनका रोज का इनकम हो ही नहीं सकता। सो दिस आर नॉन operating items which are not related to business operations. We have to go for segregation, and segregation can be done with the help of only and only vertical format. Hence we will be starting with vertical format of financial statement in my next video. Hope you have understood the basic introduction part of the financial management. Under that, I have started with finance and management classification. Finance includes all money related terms, and whenever money is there, we have to manage that money. And management is nothing but proper decision making, and for proper decision making, you have to analyze the available data. And for the purpose of analyzing the available data, we should convert horizontal data into vertical form only and only for the purpose of better decision making and proper conclusion. Hope you have understood this. In next video, we will be starting with concept number 1 and concept number 2 of financial management, where concept number 1 is conversion of horizontal P&L and trading account into vertical format, and concept number 2, conversion of horizontal balance sheet into vertical format. Hope you have perfectly understood this. Hope to see you in next lecture. Thank you very much. Hello students, welcome to JK Shah Online. Myself Dr. Yogesh Patil. In this video, we are going to start with very important chapter, which is important from exam point of view, as well as that is important from your career's point of view also. It is practical chapter. Name of the chapter is estimation of working capital. वर्किंग कैपिटल टर्म इज नॉट न्यू फॉर यू, ये वर्किंग कैपिटल आपने पढ़ा था। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग उस चैप्टर के ना जड़ों तक जाओ, गो टू द ग्रास रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर के क्या है इसमें, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द कैलकुलेशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, हाउ प्रैक्टिकली दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, when we are going to use this particular chapter, calculations क्या रहेंगे, इसके concepts क्या है, सब कुछ समझने की कोशिश करो। एक एक करके हर एक concept हम लोग discuss करते हैं इस chapter में। So let's start with the postmortem of the name of chapter, that is estimation of working capital. And estimation of working capital में term working capital is not new for you, आप लोगों ने पढ़ा है। As far as vertical balance sheet is concerned, your vertical balance sheet is divided into two parts, sources of fund and applications of fund.
अंडर एप्लीकेशन ऑफ फंड फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट के बाद जो हेडिंग रिकॉर्ड किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. जनरली in video lectures also, in live interactive lectures also, in face-to-face lectures also, if I ask this particular question to all the student, what do you mean by working capital, what do you mean by working capital, बोलते ही स्टूडेंट का आंसर ऐसे सामने आ जाता है, सर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. उनको लगता है वाह हम लोग 30 मार्क खान है, हमने सही आंसर दिया. नहीं भाई, तेरा आंसर रॉन्ग है. आई एम आस्किंग फॉर मीनिंग and you are throwing formula on my face. मैंने तेरे से पूछा कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस है. कैसे करते हैं इस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मीनिंग क्या है वो भी पता होना चाहिए. अगर आप लोग इंटरव्यू में कहीं पे गए और वहां पे अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, इफ यू आर गिविंग आंसर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दे विल थ्रो यू आउट ऑफ द केबिन. आप लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा. पहले मीनिंग समझो. वर्किंग कैपिटल इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल. अर्ज है, कौन सा कैपिटल बोला मैंने, इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज. सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल कैसे, वर्किंग कैपिटल बच्चों कैसे कैलकुलेट होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, राइट. Current assets are short-term assets. Current liabilities are short-term liabilities. Short-term assets minus short-term liability gives you short-term capital. That's why working capital is called as a short-term capital, which is required to conduct day-to-day business activities. हर दिन की activities, business की perform करने के लिए जो पैसा लगता है, that पैसा is called as working capital. So hope you have clearly understood the meaning of working capital. चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर. इस पूरे चैप्टर में हमें एक्चुअल वर्किंग कैपिटल नहीं कैलकुलेट करना है. मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं कि एट प्रेजेंट माय कंपनी इज हैविंग करंट एसेट्स अमाउंटेड टू ₹1 lakh एंड एट प्रेजेंट माय कंपनी इज हैविंग करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹70,000. तो कंपनी के पास करंट एसेट्स 1 लाख के हैं, करंट लायबिलिटी 70,000 की है. छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा भी होगा, वो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके बता देगा वर्किंग कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज 30,000. This working capital is called as your present working capital, and whatever this chapter is going to deal with is not the present working capital. यहाँ पे हमें find out करना है estimated working capital. Now what do you mean by estimation? Estimation in general terms, it means deciding in advance about the future. Sir, deciding in advance about the future को तो हम लोग planning बोलते हैं. Yes, planning is estimation. Sir, deciding in advance about the future को हम लोग budgeting बोलते हैं. Yes, budgeting is estimation. Your forecasting is estimation. जब भी आप लोग future के decision advance में लेते हो, that is nothing but estimation. Sir, estimation of working capital में we are going to calculate short term capital which is required for day to day business activities for current period के future period. Answer is readily available with you. We will be calculating the capital requirement of future period. Sir, working capital calculate करने का formula समझा, लेकिन ये chapter में अगर मुझे estimated working capital calculate करना है तो मेरे पास current asset और current liability भी कौन से होने चाहिए, estimated, and this is the new point of this particular chapter. So if you have present current asset and present current liability with you, you will be getting present working capital. But for calculating estimated working capital, you should have estimated current asset and estimated current liabilities with you. बच्चे सर पकड़ के बैठते और बोलते सर ये estimation का meaning तो समझा, ये planning है, ये decision making in advance है, future के लिए हम लोग ये advance में decision ले रहे, लेकिन why estimation is needed? What is the need for estimation? So there is a need for estimation. There is a need for estimation in each and every case, guys. Why you are doing CA? Why some of the students are doing MBA? Why some of the students are doing graduation? Why some of the students are doing CS? ये सारे के सारे आप लोग courses क्यों कर रहे हो? To secure your future, and this is the need. आप लोग future आपका सिक्योर करने के लिए जो एडवांस में प्लानिंग करते हो ना, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एस्टिमेशन. आप लोग एस्टिमेटेड एक टारगेट रखते हो, वो अचीव करने की कोशिश करते हो, वैसे ही एस्टिमेशन किया जाता है. से फॉर एग्जांपल, चलो अगर आपको बच्चों फ्यूचर में शादी करनी है, सब लोगों का ना अभी एकदम मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगा, माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. सर
जब तक कैपिटल विपिटल बोल रहा था अच्छा लग रहा था, ये शादी कहाँ से लाया यार, एग्जाम्पल है, इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग फ्यूचर में शादी करना चाहते हो तो डायरेक्टली ऐसे जाके मंडप में खड़े हो जाओगे या ऐसे मंगलसूत्र लेके घूमोगे हर जगह पे, आओ शादी करते शादी करते, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल यार, इम्प्रैक्टिकल है ये। शादी करने के लिए पहले तो आप लोग ना लड़की ढूंढते हो। अगर स्टूडेंट लड़की है तो आप लोग लड़का ढूंढोगे, मतलब अपोजिट वाला पार्टनर पहले ढूंढोगे ना, सेम ऐसा ही मुझे कुछ बोलना है कि यू आर गोइंग टू सर्च फॉर द पार्टनर फर्स्ट। जैसे ही पार्टनर रेडी हो जाता है, बाद में ये मैंने पूछा भी है बहुत सारे लेक्चर में कि यार शादी करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो लोग बोलते पैसा। अरे पहले पार्टनर ढूंढ, पार्टनर के बाद घर वालों को मना, घर वाले मानने के बाद अरेंज मैरिज है तो अच्छी बात है, आप लोगों को अरेंज करना पड़ेगा पंडित। उसके बाद आपको वेन्यू डिसाइड करना है, मेन्यू डिसाइड करना है, ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद पता चलेगा यार ये करने के लिए तो पैसा लगता है। मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका बजटेड फंड कितना लगेगा। See, without framing budget for your marriage, you won't be able to start with that activity only यार। बजटिंग के बिना कैसे डायरेक्टली शादी करोगे? अगर तो आप लोग मंडप में जाके खड़े होकर तभी पता चला कि आपके पास का पैसा इनएडिक्वेट है, तो शादी टूट जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। अगर आपको लगा बहुत पैसे, सर तो क्या बोल रहा है, अरे मैं बोल रहा हूं कि मैंने एस्टिमेशन किया कि शादी करने के लिए 600 रुपीज की जरूरत होती है। ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। 600 रुपीज करोड़ भी हो सकता है, लैक्स भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, एग्जाम्पल पे फोकस करना, उसके कंटेंट को ज्यादा दिमाग में मत रखना। 600 इज द फंड नीडेड टू परफॉर्म एक्टिविटी। बैंक में जाके जब मैंने चेक किया तभी पता चला, अला मेरे पास तो 500 ही है, तो क्या मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूं? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ना सर तू तो नहीं कर सकता क्योंकि तेरे पास इनएडिक्वेट फंड है। मैं करता था, करता हूं और करता रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस केस में मुझे पता चलेगा कि 100 रुपीज को मुझे करना पड़ेगा बोरो। आई हैव टू अरेंज फॉर द बोरोइंग्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बोरो करना है कि नहीं ये मुझे कब पता चलेगा? जब मैं एस्टिमेशन करूंगा तब। अगर एस्टिमेशन किया ही नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट फंड अवेलेबल विथ मी। Sir, what you are trying to explain? I am trying to explain only one thing. What is the need of estimation? Need ये है कि you have to find out whether your requirement के हिसाब से working capital is excessive or inadequate. अगर आप लोगों को पता चला कि 600 रुपए का खर्चा है लेकिन तेरे बैंक में 1800 रुपया है, मतलब सफिशिएंट फंड है, आपके पास ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद 1200 का एक्स्ट्रा फंड बचेगा। दैट फंड कैन बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट। ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट। सर तू कितना बोल रहा है, ये जो बोल रहा हूं उसमें मैंने क्या क्या कवर किया वो भी पता चला क्या? आई हैव कवर्ड मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, short-term capital required to conduct day-to-day business activity. It is calculated by using current asset minus current liability formula. Estimation means deciding in advance about the future requirement, and for calculating estimated working capital, estimated current asset and estimated current liabilities are required. What is the need of estimation? Estimation is required to find out excessive and inadequate working capital in the future. In case of inadequate fund, you have to arrange for fund, and in case of excessive fund you have to decide for the investment options available in the market. Hope you are getting my explanation. अगर पैसा ज्यादा है तो अभी से सोच के रख कहां पे इन्वेस्ट कर सकता है, अगर पैसा कम है तो अभी से सोच के रख कहां से बोरो कर सकता है, as on the spot borrowing is not possible according to the current market era, right? Let's proceed further. एस्टिमेशन अगर करना है तो उसके लिए कुछ तो डिपेंडेंसी फैक्टर्स होंगे। सो लेट्स डिस्कस एस्टिमेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट आइटम्स। एस्टिमेशन डिपेंड्स ऑन वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय यू। अभी बिजनेस एक्टिविटी में होता क्या है? प्रोडक्शन, देन परचेजेस ऑफ मटेरियल, देन परचेजेस के बाद हो जाएगा प्रोडक्शन के बाद करोगे सेल ऑफ योर फिनिश गुड्स, पेमेंट ऑफ वेजेस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच यू आर परफॉर्मिंग इन योर बिजनेस, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ एक्टिविटी, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट इज नथिंग बट number of units to be produced during the coming year.
जिस पीरियड का आप लोगों को वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, उस पीरियड में आप लोग कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, कितने यूनिट्स बेचना चाहते हो, उसके हिसाब से आपके नीड्स चेंज हो जाते हैं. सो वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल और एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल इज योर नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. इसी नंबर ऑफ यूनिट को बोला जाता है लेवल ऑफ एक्टिविटी, विच विल बी डायरेक्टली गिवन इन योर क्वेश्चन. नीड नॉट टू वरी. सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है. दूसरी चीज है क्रेडिट पीरियड. सर ये क्या होता है? यू कैन से डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डेट ऑफ रिसीट के बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज योर क्रेडिट पीरियड. सो क्रेडिट पीरियड कैन बी अलाउड टू डेटर्स, इट कैन बी अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर्स. जो वेजेस के दिन वर्कर ने काम किया लेकिन आप लोगों ने तब भी पैसा नहीं दिया, आपने वेजेस को आउटस्टैंडिंग रखा 1 महीने के लिए, वो जो 1 महीने का टाइम लैग होता है. सर क्या बोला? टाइम लैग इज द गैप. That gap is called as credit period. This credit period is also given in the question. सर ये दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग को क्या करना है? अगर आप लोगों को एस्टिमेटेड करंट एसेट और एस्टिमेटेड करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो इस लेवल ऑफ एक्टिविटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्रेडिट पीरियड से. And this is how we are going to calculate the required estimated current assets and estimated current liability from our available information. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त सिर्फ एक ध्यान रखना, लेवल ऑफ एक्टिविटी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, क्रेडिट पीरियड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. क्रेडिट पीरियड अगर मंथ्स में दिया है तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 12. अगर ये क्रेडिट पीरियड आपको वीक्स में दिया है तो इसे डिवाइड करो 52 से, और अगर क्रेडिट पीरियड आपके डेज में है तो डिवाइड करो 365 से. किसी से भी डिवाइड करो, आपको मिलने वाला आंसर आइदर मंथ्स वाला होगा या आपका आंसर जो है वो वीक्स के हिसाब से होगा. सर कैसे डिसाइड करेंगे? क्वेश्चन रीड करके. सो टिल नाउ व्हाट ऑल पॉइंट्स वी हैव कवर्ड. Very first, we have covered the meaning of working capital, that is short-term capital required to conduct day-to-day business activities. To calculate working capital, one formula can be used, that is current asset minus current liabilities. Current assets are short-term assets which can be converted into cash within a period of 1 year, and current liabilities are the liabilities which has to be paid within the period of 1 year. That's why these both are the short-term items. By deducting this both the items, you will be getting short-term capital, which is termed as working capital. This chapter deals with estimation of working capital, means we are going to calculate the future working capital. Now why estimation is needed and what is the meaning of estimation? Estimation means deciding in advance about the future requirements of capital. It is needed only for two reasons. First reason, to find out excessive or inadequate capital. Second reason, in case of inadequate capital, to arrange funds from the various sources of finance. And second one, in case of excessive capital, you have to invest your fund appropriately. So these are the reasons behind performing estimation activity. Third one, estimation depends upon two items. First one is level of activity, that is your business activity you are performing for how many units, that we have to consider. And second one, estimation is also depends upon your credit period, what credit facility you are getting as well as your offering, that is to be considered. For calculating estimated current asset and current liability, you have to multiply all the level of activities with credit period. Now very important point, that is लेवल ऑफ एक्टिविटी. अभी हर एक एसेट्स का और हर एक लायबिलिटी का लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी लेवल मैंने एक टेबल बनाया है, वो टेबल एक्सप्लेन करता हूं, आप लोगों को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. If you are talking about stocks of the company, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक. स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन, स्टॉक ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड स्टॉक एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन. स्टॉक बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन का जो होगा ना, उसे बोला जाता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. स्टॉक जो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन वाला होगा उसे बोला जाता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा वाला जो फाइनल स्टॉक बचेगा एंड ऑफ द प्रोसेस का, उसे बोला जाता है फिनिश गुड स्टॉक. Done? If you are calculating stock of raw material, then level of activity for the same raw materials consumed. Sir, how to calculate? See, question में ऐसा दिया रहेगा, आपको बोलेंगे calculate stock of raw material or estimated stock of raw material if
इट्स क्रेडिट पीरियड इज 2 मंथ्स, ऐसा क्वेश्चन में दिखेगा। इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले तो समझ लो फॉर्मूला आपको यूज करना है, पूरा चैप्टर इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। आपको मल्टीप्लाई करना है क्रेडिट पीरियड से, तो मेरा यहाँ पे 50% काम हो गया, 2 मंथ्स है, सो 2 डिवाइड बाई 12 करूंगा, बराबर है। अभी मुझे देखना पड़ेगा लेवल ऑफ एक्टिविटी। व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द सेम इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट जो क्वेश्चन में रहेगा उसे मल्टीप्लाई करो 2 से, डिवाइड करो 12 से, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा भी लिख के दिया जा सकता है, कैलकुलेट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इफ इट्स क्रेडिट पीरियड इज 4 वीक्स, ऐसा लिखा रहेगा। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा 4 वीक्स डिवाइडेड बाय 52। हम लोग किसका स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं? फिनिश गुड्स का। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा सीओपी सीओजीएस, जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीओपी मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 52। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द फिनिश गुड्स का स्टॉक। मतलब पूरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से आपका फिनिश गुड्स जो है वो 4 महीने के लिए ब्लॉक रहेगा आउट ऑफ 52 वीक्स। 4 महीने के बाद वो रिलीज हो जाएगा, फिर से नया फिनिश गुड्स 4 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ये कंटिन्यूअसली पूरे साल भर होता रहेगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर द लेवल ऑफ एक्टिविटीज। रॉ मटेरियल के लिए आरएमसी, डब्ल्यूआईपी के लिए सीओपी, फिनिश गुड्स के लिए भी सीओपी, ऐसे याद रखो। रॉ मटेरियल के लिए आरएमसी, बोलो मेरे साथ, रॉ मटेरियल के लिए आरएमसी, डब्ल्यूआईपी के लिए सीओपी, फिनिश गुड्स के लिए सीओपी, फिनिश गुड्स के लिए सीओपी, रॉ मटेरियल के लिए आरएमसी, फिनिश गुड्स के लिए सीओपी, डब्ल्यूआईपी के लिए सीओपी। सीओपी का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सीओजीएस का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फुल फॉर्म फिलहाल साइड में रखो, जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन पे आएंगे क्या कैसे करना है 100% पता चलेगा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द लेवल ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू एवरी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। सर तूने सब कुछ पढ़ा, लेकिन हमारी नजर एक वर्ड पे है, वो तूने एक्सप्लेन ही नहीं किया। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। फिलहाल मैं कुछ भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैंने ये वर्ड स्किप किया। आपको सिर्फ याद रखने के लिए बोला है सीओपी। So stock of raw material is to be valued on the basis of RMC. Stock of WIP is to be valued on the basis of COP, and stock of finished goods is to be valued on the basis of finished goods का cost of production। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर्स जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट कस्टमर्स, एंड क्रेडिट कस्टमर्स के साथ आप लोगों ने जो एक्टिविटी की है वो उनके सामने लिख दी, क्रेडिट सेल्स। कस्टमर्स 2 टाइप के होते हैं। वर्बल प्रोमिसेस वाले कस्टमर्स आर कॉल्ड एज डेटर्स, एंड रिटर्न प्रोमिसेस वाले कस्टमर्स आर कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों का वैल्यूएशन क्रेडिट सेल्स पे करो। डेटर का अपोजिट होता है क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट होता है बिल पेएबल, एंड कस्टमर्स का अपोजिट होता है सप्लायर। तो क्रेडिट सेल्स का अपोजिट होगा क्रेडिट परचेजेस। सो परचेजेस इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर वैल्यूइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पे। अगर परचेजेस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको वैल्यूएशन के लिए बेसिस लेना पड़ेगा आरएमसी। अदर देन दिस ऑल आइटम्स लाइक 3 स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल छोड़ के बाकी के करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज अगर है तो उनके लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। सो टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड विद पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, जहां पे मीनिंग मैंने बोल दिया, एस्टिमेशन का मीनिंग बोल दिया, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोल दिया, एस्टिमेशन क्यों करना है ये भी डिस्कस हो गया। एस्टिमेशन करने के लिए डिपेंडेंसी फैक्टर, लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड क्रेडिट पीरियड होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करो। आपको सिर्फ याद रखना है करंट एसेट, करंट लायबिलिटी का लेवल ऑफ एक्टिविटी। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कर रहे हो तो आरएमसी लो, डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन कर रहे हो तो प्रोपोर्शनेट सीओपी लो। आपको याद क्या रखना है? सीओपी। अगर यू आर टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स का स्टॉक वैल्यूएशन, यू हैव टू कंसीडर सीओपी और सीओजीएस व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के लिए क्रेडिट सेल्स लो, क्रेडिटर बिल्स पेएबल के लिए क्रेडिट परचेज ढूंढो। अगर परचेज नहीं रहेगा तो आरएमसी लो, और अदर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के लिए यू हैव टू consider the given information in the question. Let's discuss some important points of this chapter. Whenever you are going to calculate the estimated working capital, while calculating estimated working capital, you have to assume some points. Assumptions बहुत होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्योंकि कोई रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज हम लोग इसमें यूज नहीं कर रहे। दिस इज द जनरल सब्जेक्ट।
जो जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसीलिए अजम्पशन करना जरूरी बन जाता है. सो फ्यू अजम्पशंस आर देयर which I have covered under important points. There are 7 important points, जिसमें से पहला point बोलता है it will be always assumed that all the business activities का मतलब क्या है कि पूरे बिजनेस में, पूरे साल में जितने भी एक्टिविटीज आप लोग परफॉर्म करते हो, लाइक सेल्स हुआ, परचेजेस हुआ, प्रोडक्शन हुआ, ये सारे एक्टिविटीज आर इवनली स्प्रेड ड्यूरिंग द ईयर. इवनली स्प्रेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या हुआ? अगर किसी क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है और सेल्स का अमाउंट दिया है 12 लाख रुपीस पर एनम, और अगर क्वेश्चन में पूछा मंथली सेल्स कितना है, हम लोग डायरेक्टली आंसर देंगे मंथली सेल्स जो है वो 1 लाख रुपया है, क्योंकि 12 से डिवाइड करेंगे पर एनम फिगर को तो मंथली मिलेगा. So ultimately what we are assuming that whole activity is evenly spread, which is practically impossible, right ना? ऐसा कभी हो सकता है कि हर महीने 1 लाख का ही सेल होगा? नहीं होगा. इसीलिए ये assumption है. At the same time, अगर आपके क्वेश्चन में बोला रहेगा कि परचेजेस जो है, कंपनी के परचेजेस 50,000 पर मंथ है और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला एनुअल परचेजेस, तो एनुअल परचेज कंप्यूट करने के लिए इसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 6 लाख पर एनम. यहां पे भी हम लोगों ने अज्यूम किया कि हर महीने का परचेजेस इज सेम. सो वॉट एवर इज द एक्टिविटी गिवन, प्रोडक्शन हो, परचेजेस हो या सेल्स हो, जब तक स्पेसिफिकेशन नहीं दिया जाता तब तक आपको अज्यूम करना है दैट ऑल द एक्टिविटीज आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल में वो इक्वली फैली हुई है. दिस इज फर्स्ट अजम्पशन व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, जो अपने को याद रखना है. Once this assumption is done, let's move to the second point. Second point says cash sales and cash purchases are to be ignored. अगर क्वेश्चन में बोला है कि सेल्स इज अमाउंटेड टू रुपीज 12 lakhs और इस 12 lakhs में से कैश सेल जो है वो है 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, इसका मतलब पता चलेगा आपको कि इसका क्रेडिट सेल जो है वो 10 lakhs है. सिंपल. सर तूने बोला कैश सेल्स को इग्नोर कर. हाँ, इसको इग्नोर करेंगे, इसका यूज ही नहीं है. क्यों यूज नहीं है? क्योंकि जब भी आप लोग कस्टमर्स का कैलकुलेशन करोगे ना बच्चों, कस्टमर्स के कैलकुलेशन के लिए आपको कौन सा सेल्स लेना जरूरी है? क्रेडिट सेल्स. इसीलिए पूरे सेल्स में से कैश सेल्स को इग्नोर करो. आपको सिर्फ कौन सा सेल कंसिडर करना है? क्रेडिट सेल्स. दैट इज सिंपल. सेम वे जब आप लोग क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का कैलकुलेशन करते हो तभी उसके लिए आपको कौन सा परचेजेस लेना पड़ता है? क्रेडिट परचेज. तो आपको क्या इग्नोर करना पड़ेगा? कैश परचेज. सो whenever we are going to solve with the sums, we are going to start with the solving sum, we will be ignoring 2 items from our calculation, cash sales and cash purchases, as they are not going to help us for computing working capital का कोई भी element. Point number 3, डेटर शुड बी वैल्यूड एट क्रेडिट सेल्स. ऑब्वियसली डेटर का वैल्यू जो है वो क्रेडिट सेल्स पे करना चाहिए. यही हम लोगों ने पढ़ा था, डेटर का वैल्यूएशन क्रेडिट सेल्स पे होगा. हाउएवर दे कैन ऑल्सो बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. सर ये कब करने का? ओनली व्हेन इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. जब तक क्वेश्चन गूंगा है, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, शांत पड़ा है क्वेश्चन, तो डेटर का वैल्यूएशन क्रेडिट सेल्स पे कर. लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला डेटर शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फिर भी तू अगर सेल्स पे वैल्यू करता है तो मार्क्स नहीं मिलेगा. डेटर का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करेंगे जब क्वेश्चन में बोला रहेगा डेटर्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट. अदरवाइज दे विल बी वैल्यूड ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल्स. सो फर्स्ट अजम्पशन, सारे एक्टिविटीज इवनली फैले हुए हैं. सेकंड अजम्पशन, कैश है, परचेज है, कैश सेल्स है, वो इग्नोर करो. उसके बाद तीसरा पॉइंट पड़ा, डेटर का वैल्यूएशन क्रेडिट सेल्स पे होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला कॉस्ट पे करो तो कॉस्ट पे करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 4 इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स. अगर WIP एंड फिनिश गुड्स की बात करोगे तो WIP का वैल्यूएशन COP पे होता है और फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन भी COP पे ही होता है. मैक्स टू मैक्स यहाँ पे COGS लिखा है. इफ यू ऑब्जर्व दिस आइटम्स, और अगर आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट पता रहेगा तो उसमें आप लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और उसके बाद आपका P&L अकाउंट बनता था, राइट?
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करके आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आता था, सीओपी जो आप लोग ट्रांसफर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, ठीक है। मतलब एज पर एज सीओपी इज कंसर्न एंड सीओजीएस इज कंसर्न, ये दोनों के दोनों कॉस्ट एलिमेंट्स हैं और इनका संबंध सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग से है। दे आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू द पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहता ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट की बात चल रही है। इसीलिए जब भी आप लोग WIP और फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन करोगे, वी शुड कंसीडर all the items from manufacturing and trading account. That clearly means no P&L item is to be entertained while calculating stock of finished goods and stock of WIP. Let me give you example. अगर आप लोग और precisely पढ़ना चाहते हो तो क्या क्या consider होगा? Raw material consume, yes we have to consider because it is a part of your manufacturing trading account. Direct labor मतलब आपके wages consider करने पड़ेंगे। इसके बाद direct expenses, yes consider करने पड़ेंगे, they are directly related to the production. अगर फैक्ट्री एक्सपेंस दिख रहा है तो कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिख रहा है, नहीं ये कंसीडर नहीं होगा बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आप लोग P&L अकाउंट में लिखते हो। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आया नहीं कंसीडर करो, एडवर्टाइजिंग आया नहीं कंसीडर करो, ऑफिस का रेंट आया नहीं कंसीडर करो, मतलब P&L का आइटम कंसीडर नहीं होगा। while calculating stock of WIP and stock of finished goods you have to consider only RMC, direct labor, direct expense and factory expenses for calculating which two stocks बच्चों, पहला वाला WIP और दूसरा वाला जो है वो रहेगा आपका फिनिश गुड्स। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। जब से हम लोगों ने ये रॉ मटेरियल स्टॉक बोला है, मेरे मुंह से आप लोगों ने एक टर्म सुना रहेगा RMC, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम, बराबर है। हाउ टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम आप लोगों ने पढ़ा भी है, फिर भी एक बार बताना चाहता हूं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। व्हेन यू आर गोइंग टू एडजस्ट ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, सर कैसे सर? समझो मेरे पास 5,000 रुपए का मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसमें मैंने और ना 55,000 रुपीज का मटेरियल खरीदा, मतलब मेरे पास टोटल मटेरियल कितने वैल्यू का हो गया? 60,000, जिसमें से 10,000 रुपीज का मटेरियल इज नॉट यूज्ड और यू कैन से नॉट कंज्यूम्ड बाय मी। 5,000 था, 55,000 खरीदा, जिसमें से 10,000 यूज ही नहीं हुआ, कंज्यूम ही नहीं हुआ, तो कंज्यूम कितना हो गया? कंजम्पशन इज ऑफ 50,000। कैसे आया? बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल plus purchases minus closing stock of raw material is equal to raw material consumed. This is how we are going to calculate raw material consumed. Now very important information. Now when suppose chalo opening stock of raw material is available with us 5,000 rupees and closing stock of raw material is not given in the question, ऐसा कुछ तो है, या फिर ऐसा कुछ दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन 10,000 रुपीज, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो उस केस में अपने को अज्यूम करना पड़ेगा दैट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सेम। ये कब अज्यूम करोगे? जब आपके क्वेश्चन में ओपनिंग का वैल्यू नहीं दिया हो तो। उस क्वेश्चन में अज्यूम करना ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक्स बोथ आर सेम, उस केस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद आपका एक यहाँ पे कंक्लूडिंग पॉइंट बन जाएगा, आपका आरएमसी और परचेजेस दोनों सेम हो जाएंगे। ये दोनों सेम होते हैं जब वो दोनों सेम होते हैं, सत्यानाश हो ये दोनों सेम होते का मतलब क्या? आरएमसी एंड परचेजेस सेम होते हैं। वो कब सेम होते हैं? जब ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक सेम होंगे तो। एंड दैट इज व्हाई मैंने इस टेबल में आपको पढ़ाया था कि हमेशा वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल जो है वो परचेजेस पे करो, और परचेजेस नहीं रहेगा तो आरएमसी पे वैल्यूएशन करना। गाइस 99% क्वेश्चन में क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल का वैल्यूएशन हम लोग क्रेडिट परचेस पे ही करने वाले हैं। सिर्फ ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हम लोगों को
क्रेडिट परचेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 99.99% अपना वैल्यूएशन जो है वो आरएमसी पे करना है। लेट मी करेक्ट माय स्टेटमेंट, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 99% आपको आरएमसी पे वैल्यू करना है। सिर्फ कुछ क्वेश्चन में हमें परचेजेस पे वैल्यू करना होगा। ये दोनों सेम होते हैं जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक सेम रहेगा। लेट्स मूव फर्दर। पॉइंट नंबर 6 and point number 7 both are very important. This is regarding valuation of WIP and this is regarding valuation of finished goods. If you want to value WIP and finished goods का stock, अभी के ही लेक्चर में पॉइंट नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि WIP और फिनिश गुड्स जब भी आप लोग वैल्यू करोगे आपको ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में से 4 चीजें कंसीडर करनी है। पहला कंसीडर करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर कंसीडर करना है डायरेक्ट वेजेस को, फिर कंसीडर करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इफ एनी, और फिर कंसीडर करना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स या जिसे बोलते हो फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इनको ये WIP में लिखा सेम चीजें रीराइट कर रहा हूं फिनिश गुड्स में भी, क्योंकि दोनों का बेसिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली। सो डायरेक्ट वेजेस followed by direct expenses and followed by factory expenses। ये सब कुछ मैंने लिख दिया। डन। चलो ये लिखा तो सही, कंटेंट्स तो सेम है, बट व्हाट अबाउट डिग्री ऑफ कंप्लीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now if you're talking about stock of WIP, guys, what do you mean by WIP? Whether production is completed or it is under process. Work in progress का मतलब होता है production is not completed, you're talking about incomplete production. Incomplete production का मतलब क्या हुआ कि आपने मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया लेकिन बाकी के खर्चे अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, इफ आई वांट टू स्टिच माय शर्ट, अगर मुझे शर्ट स्टिच करना है तो शर्ट स्टिचिंग के लिए मुझे मटेरियल देना पड़ेगा, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज क्लोथ। मैं टेलर के पास जाके कितना क्लोथ दूंगा, उसे बोलूंगा 10% कपड़ा लेके तू स्टार्ट कर प्रोडक्शन, मेरा शर्ट का कॉलर बना के दे, अच्छा लगेगा। दूसरे दिन जाके और 20% उसको शर्ट का कपड़ा दूंगा, बोलूंगा एक स्लीव बना के दे, मैं चेक करता हूं बराबर होती है क्या। इज इट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ? नो। You have to introduce 100% raw material in the beginning of the production process only. जब भी production process start होगा 100% material maximum majority time introduce किया जाता है। कुछ ही प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कभी कभी कम मटेरियल डालते हैं, लेकिन जनरली अगर बात करोगे तो 100% रॉ मटेरियल यू हैव टू इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस ओनली। बट व्हाट यू थिंक, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, क्या सारे खर्चे आपके साथ में होते हैं? वर्कर्स को पूरा का पूरा पैसा साथ में देते हो कि ग्रेजुअली देते हो? ऑब्वियसली ग्रेजुअली। फैक्ट्री का खर्चा मतलब फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री पावर, मशीन का डेप्रिसिएशन, सब कुछ साथ में ही चार्ज कर देते हो कि ग्रेजुअली? ग्रेजुअली जैसे आप लोग यूटिलाइजेशन करते जाओगे वैसे आप लोगों को ये खर्चे इनकर करने हैं। तो ऑन एन एवरेज हम लोग पकड़ के चलते हैं कि अदर all expenses are 50% completed, they are not fully completed. If you observe WIP का calculation, material is fully completed, remaining things are partly completed। मतलब हम लोगों ने ये जो पूरा का पूरा COP लिखा, ये full COP लिखा कि proportionate COP लिखा। And that's why मैंने जब आप लोगों को ये टेबल पढ़ाया था, उस टेबल में WIP के सामने COP देखो मैंने क्या लिखा था, proportionate COP। तभी मैंने बोला था फिलहाल टेंशन मत लो, अभी टेंशन दे रहा हूं। WIP में COP लेना है, बट फुल्ली कंप्लीटेड COP के प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट क्या प्रोपोर्शन लोगे? मटेरियल 100%, रिमेनिंग कॉस्ट एलिमेंट 50%। चलो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स थोड़े भी समझे हैं तो हेल्प मी आउट। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करना है। फिनिश गुड्स का स्टॉक अगर वैल्यू करोगे तो पहले बताओ फिनिश गुड्स मतलब क्या? अंडर प्रोसेस स्टॉक, इनकम्प्लीट स्टॉक के फुल्ली कंप्लीटेड स्टॉक? योर आंसर इज यस, फुल्ली कंप्लीटेड स्टॉक। स्टॉक इज फुल्ली कंप्लीटेड मतलब मटेरियल कॉस्ट इज फुल्ली इनकर्ड। आप लोगों ने पूरा मटेरियल डाला रहेगा तब जाके पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ रहेगा, बराबर। व्हाट अबाउट रिमेनिंग आइटम? वेजेस का खर्चा आधा अधूरा हुआ रहेगा कि वेजेस का खर्चा पूरा कर दिया आपने? ऑब्वियसली गुड्स फिनिश्ड है, इसका मतलब आपने वेजेस भी पूरे कर लिए।
आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कंप्लीट कर लिए, आप लोगों ने फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कंप्लीट कर लिए। इसका मतलब यहाँ पे यू हैव टू कंसीडर फुल सीओपी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन, इसीलिए फिनिश गुड्स के सामने मैंने सीओपी लिखा, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज नहीं किया है। होप यू अंडरस्टूड दिस। सो दिस आर दी 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में अजम्पशन किया ऑल एक्टिविटीज आर इक्वली स्प्रेड। पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने समझा कि कैश सेल्स और कैश परचेस कंसीडर नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 बोला कि डेटर का वैल्यूएशन जब तक है जान किस पे करना, क्रेडिट सेल्स, लेकिन अगर क्वेश्चन बोला तो क्वेश्चन माई बाप है, उसकी बात सुनो और उसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 बोला कि जब फिनिश गुड्स और WIP बोलते हो, वैल्यू करते हो, तभी 4 चीजें कंसीडर करना, मटेरियल कॉस्ट दैट इज RMC, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, P&L में से कुछ नहीं आएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 में RMC का फॉर्मूला पड़ा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन जब ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहेगा आपका RMC और परचेस सेम रहेगा। क्रेडिटर का वैल्यू मैक्सिमम टाइम हम लोग RMC पे करेंगे, बहुत कुछ कम क्वेश्चंस है जिसमें इसका वैल्यूएशन आपको परचेसेस पे करना है। पॉइंट नंबर 6 में वैल्यूएशन ऑफ WIP में देखा, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट यू हैव टू कंसीडर, मटेरियल 100%, रिमेनिंग कॉस्ट एलिमेंट्स 50%, एंड वैल्यूएशन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में आप लोगों ने देखा एवरीथिंग यू हैव टू कंसीडर एट फुल्ली कंप्लीटेड लेवल दैट इज 100%। अभी बच्चों इसके बाद आता है सम सॉल्विंग। सम सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मेट तो आपके पास होना चाहिए, तो चलो सीख लेते हैं वर्किंग कैपिटल के सम का फॉर्मेट, विच इज वेरी वेरी सिंपल फॉर्मेट। थोड़ा सा वियर्ड लगेगा लेकिन फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ लाइंस ड्राफ्ट किए हैं, इनका हेडिंग लिखूंगा तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या ड्रॉ किया है। चलो लेट्स गिव हेडिंग टू ऑल दिस कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में विल बी रिकॉर्डिंग ऑल द आइटम्स अंडर द हेड ऑफ पर्टिकुलर्स, जहां पे सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड कॉलम इज फॉर CP एंड हियर CP स्टैंड्स फॉर क्रेडिट पीरियड, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये बड़ा सा जो बीच का कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट्स बनाएंगे और लास्ट कॉलम में हम लोग फाइनल अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। इस स्टेटमेंट का नाम होगा स्टेटमेंट शोइंग estimated working capital for the period so and so. Done. So this is how we are going to start with the statement, और always आपको statement के ऊपर आपके कंपनी का नाम रिकॉर्ड करना है। So statement स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को रिकॉर्ड करना है करंट एसेट्स। So part A I am using short forms here, आप लोगों को फुल फॉर्म्स रिकॉर्ड करने हैं। करंट एसेट्स लिखा क्योंकि मैं वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूं, और बच्चों वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो वेरी फर्स्ट करंट एसेट इज द हेडिंग। मैं एक यहाँ पे ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरा पहला एसेट दैट इज स्टॉक। स्टॉक में भी 3 वैरायटीज आएंगे, जिसमें से पहला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसका क्रेडिट पीरियड क्वेश्चन में दिया रहेगा। रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए पहले लिखो RMC का अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई करना क्रेडिट पीरियड से, डिवाइड करो 12 से, जो भी अमाउंट आएगा दैट अमाउंट यू हैव टू रिकॉर्ड इन द अमाउंट का कॉलम। इट इज दैट सिंपल। RMC विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, क्रेडिट पीरियड विल बी अवेलेबल विथ यू, क्वेश्चन में से ही मिलेगा, तो इमीडिएटली रॉ मटेरियल कंप्यूट कर सकते हो। वंस यू आर डन विथ रॉ मटेरियल के बाद आपको रिकॉर्ड करना है WIP, जिसका क्रेडिट पीरियड भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलो WIP का क्वेश्चन में क्रेडिट पीरियड तो दिया रहेगा, लेकिन WIP का कैलकुलेशन कौन से बेसिस पे होता है, थियरी याद करो। कैलकुलेशन इसका बेसिस पे होता है प्रोपोर्शनेट COP में, और COP में आता है आपका RMC में के बाद आता है डायरेक्ट लेबर के बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फाइनली आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यही ब्रेकअप आप लोगों ने लिखा था COP का। इसको हर एक अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, सेम क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 12 करेंगे, बिकॉज क्रेडिट पीरियड फॉर WIP इज सेम, बट देयर इज फर्दर कंप्यूटेशन में मटेरियल को आपको लेना है 100%,
एंड रिमेनिंग कॉस्ट एलिमेंट्स को यू हैव टू टेक एट 50% एज दे आर पार्टली कंप्लीटेड। जो भी वैल्यूज आपके आएंगे फर्स्ट रिकॉर्ड देम इन अ कॉलम कंपल्सरी, और जो भी टोटल रहेगा दैट यू हैव टू पोस्ट टू द सेकेंड कॉलम, दैट टोटल विल गिव यू स्टॉक ऑफ WIP का फिगर। वंस दिस स्टॉक इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, आपका नेक्स्ट स्टॉक आता है फिनिश गुड्स, जिसका क्रेडिट पीरियड भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। अभी बताओ बच्चों, फिनिश गुड्स में क्या ये पूरा ब्रेकअप फिर से लिखेंगे, ये 100 100 100 4 बार लिखेंगे कि टोटल डायरेक्टली लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली यू हैव टू टेक टोटल, एंड टोटल को हम लोग बोलेंगे आइदर COP डिपेंड ऑन क्वेश्चन और COGS। ये डिवाइड नहीं है, COP और COGS, इसे मल्टीप्लाई करना है क्रेडिट पीरियड से, डिवाइड करोगे 12 से, आंसर आ जाएगा आपका लास्ट कॉलम में। सर इंटू 100% करने का करके देख, उतना ही आंसर आएगा। 100% करके क्या रेट तुम लोगों को मिलने वाला है? सो दिस 3 स्टॉक्स फर्स्ट यू हैव टू रिकॉर्ड। जैसे ही स्टॉक रिकॉर्ड करके होते हैं, आपको नेक्स्ट हेड रिकॉर्ड करना है, दैट इज कस्टमर्स। सेम स्टफ जो डिपेंडेंसी टेबल में था वही मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख दिया मैंने कस्टमर्स। कस्टमर्स में 2 कस्टमर्स पॉसिबल है, पहला है आपका डेटर्स, और डेटर के साथ आएगा बिल्स रिसीवेबल, इसका भी क्रेडिट पीरियड क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर दिस इज क्रेडिट सेल्स, तो अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में से ढूंढना, इनटू क्रेडिट पीरियड करो, डिवाइड बाय 12 करो, आंसर जो आएगा वो अमाउंट के कॉलम में लिखो। इट इज दैट सिंपल। डिवाइड बाय 12 इज द कांस्टेंट फैक्टर व्हिच आई एम कंसीडरिंग इंस्टेड ऑफ 12। क्वेश्चन में कम ऑन 52 और 365 वाला फंडा ऑल्सो। वंस कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड, कस्टमर के बाद और एक चीज होती है, दैट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर इसके बारे में तो तूने कुछ बोला ही नहीं था। मैंने बोला था कि अदर देन द गिवन डेटा, अगर बाकी की सारी कुछ चीज़ें आती है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में जो भी एक्सपेंस का नाम है वो एक्सपेंस का नाम लिखो। से फॉर एग्जांपल प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसा कुछ भी रहेगा तो वो एक्सपेंस लिखना। उस एक्सपेंसेस के अमाउंट को रिकॉर्ड करो क्वेश्चन में से, उसे मल्टीप्लाई करो क्रेडिट पीरियड से, डिवाइड बाय 12 करो, आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को रिकॉर्ड करना है बचे हुए एसेट्स लाइक कैश, बैंक एक्सेट्रा, और इनका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पे लिखा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड अमाउंट इज टू बी रिकॉर्डेड हियर। सो इफ यू चेक दिस टेबल, इस टेबल में हम लोगों ने सारे के सारे करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। करंट एसेट्स रिकॉर्ड करने के बाद लेट्स टेक टोटल ऑफ ऑल द करंट एसेट्स, इन सबको ऐड करो। ऐड करने के बाद आपको मिलेगा पार्ट ए का टोटल, एंड दिस इज नथिंग बट टोटल ऑफ करंट एसेट्स। सेम वे स्टेटमेंट आपका कंटिन्यू होगा। Because we have recorded only current assets, current liabilities are still pending. चलो रिकॉर्ड करते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी में आई एम गिविंग हेडिंग हियर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, आप लोग फुल फॉर्म यूज करना। CL इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी मैंने एक ऑर्डर यूज किया यहाँ पे। पहले लिख दिया मैंने सप्लायर, अंडरलाइन कर दिया सप्लायर। सप्लायर में 2 पॉसिबल चीजें हो सकती है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जिसका क्रेडिट पीरियड क्वेश्चन में रहेगा। ऑलवेज फर्स्ट सर्च फॉर क्रेडिट परचेजेस, और क्रेडिट परचेज नहीं रहेगा तो फिर आपको लेना पड़ेगा RMC and then multiply it by credit period, divide by 12, you will be getting amount of your creditors. Once suppliers are available, other liabilities you have to record. Other liabilities like outstanding expenses and all. Underline करो हेडिंग को, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम लिखना, क्रेडिट पीरियड क्वेश्चन में रहेगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट लिखना, मल्टीप्लाई करना क्रेडिट पीरियड, डिवाइड बाय 12 करो, इसका भी वैल्यू मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम पास न करते हुए हम लोग कर लेते हैं करंट लायबिलिटी का भी टोटल। Once this total is available with you, this will be termed as part B. पार्ट ए पार्ट बी दोनों अवेलेबल है। हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल। सो फाइनली हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल। कैसे करेंगे? ए में से बी माइनस करो,
आपको मिल जाएगा एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। ये एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल फॉर्मेट। अब ये वर्किंग कैपिटल के फॉर्मेट में इंटरचेंजेस आर अलाउड, इट इज नॉट गिवन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने अपने हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से ये फॉर्मेट बनाया। पहला मटेरियल आएगा, फिर WIP में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड्स बनेगा, फिर हम लोग वो डेटर को बेचेंगे, फिर पैसा रिकवरी होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई एम यूजिंग। किसी को लगता है कि ये फॉर्मेट में मैं कैश पहले रिकॉर्ड करूंगा, तो कैश को पहले रिकॉर्ड करो, चलेगा। किसी को लगता है मैं डेटर को पहले रिकॉर्ड करूंगा, चलेगा। इंटरचेंज इज पॉसिबल। सिर्फ ना माई बाप एक काम मत करना कि लाइबिलिटी मेरे को अच्छा लगता है पहले रिकॉर्ड करूंगा, ऐसे बोलोगे तो ना चल बे, कोई भी अलाउड नहीं करेगा। पहले करंट एसेट, बाद में करंट लायबिलिटी। इंटरनली ऑर्डर कैसे भी लिखो, लेकिन सब कुछ लिखना जरूरी होता है। यहां पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना बचा। ये जो वर्किंग कैपिटल बचा, इस वर्किंग कैपिटल को कभी कभी बोला जाता है वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? हैव यू एवर हर्ड अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटीज बच्चों? Unrecorded liabilities which are not recorded in our balance sheet, which may suddenly arise in the future, those liabilities are called as contingent liabilities. मैं रास्ते से जा रहा हूं, चलते चलते ट्रक वाले ने मुझे ठोक दिया और ट्रक का एक्सीडेंट में नुकसान हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। ये प्रीडिटरमाइन नहीं था, ये हम लोग ना प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसे जो होने वाले हादसे होते हैं ना, लॉस बाय फायर एंड ऑल वाले हादसे, उनको बोला जाता है कंटिंजेंसीज। इन कंटिंजेंसीज के लिए हमेशा एक्स्ट्रा पैसा रखना पड़ता है, एंड दैट एक्स्ट्रा पैसा इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेफ्टी मार्जिन, और इसे बोला जाता है प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज ऑल्सो। दिस इज एडिशनल कैश केप्ट बाय कंपनी टू मीट देयर कंटिंजेंसीज। जैसे ये कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में दिखेगा, डरो मत, इसको फाइनल आंसर में ऐड कर दो। ऐड करने के बाद एक अल्टीमेट फाइनल ग्रैंड टोटल मिलेगा, उसका नाम हो जाएगा एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। एंड नाउ दिस इज एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग MOS। सर, इंक्लूडिंग MOS मतलब इंक्लूडिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड दिस इज द एंड ऑफ थियोरी सेशन गाइज। Each and every concept we have discussed in this video, from the beginning theory till the end of format. So hopefully you have understood each and every concept of my explanation. Thank you very much. Hello students. Let's start with question number 5, which is very important question from exam point of view. बहुत ही प्यारा सा question है, ये पढ़ने में बहुत मजा आता है। Let's start discussing this question. Uday is an entrepreneur and has recently set up production unit of cotton shirt. एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसका नाम है उदय, एंड उसने रिसेंटली एक प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश किया है जहां पे ही इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस विद द कॉटन शर्ट्स। ही करंटली सेल्स 1 लाख शर्ट्स इन अ ईयर एट ₹500 ईच। उदय फिलहाल 1 लाख शर्ट्स के यूनिट्स बेचता है पूरे साल में, जिसके प्राइस उसने डिसाइड किया हुआ है ₹500 पर शर्ट। His variable cost to produce the shirt is ₹300 each, and he has ₹1 crore 20 lakhs as fixed cost. So variable cost is available in per unit form, and fixed cost is given in total, which is 1 crore 20 lakhs. His sales to assets ratio का मतलब होता है sales upon assets, और sales upon asset का ही meaning होता है your asset turnover. Here assets को underline करके लिख देते हैं total assets. So whenever name of asset is not given, they are total asset. His sales to assets ratio is 4 times, and 30% of his assets are financed by 10% debt, with the balance being financed by equity shares of 100 each. So this is the information regarding his capital structure. समझ लो क्या information दिया है। उसका sales to assets turnover 4 times है। उसके जितने भी assets है, जितना भी total assets पे पैसा लगा हुआ है, मतलब this is the information for total capital employed। उस capital employed में से 30% capital जो है वो raise किया है by using 10% debt, मतलब outsider का fund, borrowed fund जिसे बोला जाता है। It simply means that the balance, सर बैलेंस कितना बचा? 70%। सर कैसे कर लेते आप? 30% अगर borrowed fund है तो बैलेंस कितना बचेगा 100% में से? 70%। That is being financed by equity shares of 100 each.
द टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 40%। यहां तक उसकी जिंदगी जो थी बहुत ही आराम से चल रही थी, बहुत ही स्मूथली चल रही थी। अकेला एंटरप्रेनर था, अकेला डिस्कस कर रहा था बिजनेस, अकेला कंडक्ट कर रहा था बिजनेस, डिसीजंस खुद के थे। सो टिल नाउ व्हाट वी डिस्कस, ही यूज्ड टू प्रोड्यूस टोटल 1 लाख शेयर्स पर एनम। He used to sell them at 500 each at variable cost at 300 rupees each, और 1 crore 20 lakhs का उसका होता था फिक्स कॉस्ट। अब कुछ नॉर्मल चलता था। उसके लाइफ में आ गया ट्विस्ट। सावधान रहे, सतर्क रहे। देखो क्या आया। His newly appointed finance manager Urvashi, Satyaнаsh, newly appointed financial manager Urvashi feels that, now what she feels that is more important. So his newly appointed finance manager Urvashi feels that Uday is doing it all wrong. This actually happens in practical life. When she entered in his business as an financial manager, तभी उसको लगा कि अभी तक उदय ने जितना भी बिजनेस किया, जो भी चीजें की, सब कुछ wrong है. She feels that. What she feels? That is more important, that by reducing the price of shares to rupees 450 per share. At what price Uday used to sell the share? 500 per share. Now what उर्वशी इज सजेस्टिंग कि उसको शर्ट्स जो है वो कितने में बेचना चाहिए? 450. शी कुड इंक्रीज हर सेल्स वॉल्यूम ऑफ शर्ट्स बाय 30%. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट उर्वशी इज सजेस्टिंग. उर्वशी ने बोला कि 1 लाख शर्ट्स जो तू बेचता है 500 के हिसाब से बेचता है, यही 500 के ऊपर तू डिस्काउंट दे और एक शर्ट का प्राइस कर दे 450. अगर तू सेलिंग प्राइस रिड्यूस करेगा तो क्वांटिटी जो है कस्टमर्स खरीदने वाले बढ़ जाएंगे और उस केस में तेरा सेलिंग का आउटपुट 30% से बढ़ेगा. मींस तू फ्यूचर में 1,30,000 शेयर्स बेच सकता है अकॉर्डिंग टू उर्वशी. नाउ फिक्स्ड कॉस्ट वुड रिमेन कांस्टेंट. बताने की जरूरत ही नहीं है. वॉट एवर इज द क्वांटिटी, फिक्स्ड कॉस्ट का फीचर ही यही है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट. एंड वेरिएबल कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, मतलब जो भी वेरिएबल कॉस्ट था वो उतना ही रहेगा. हर सेल्स टू एसेट रेशियो वुड बी 4.68 टाइम्स. प्रीवियसली जो था अपने उदय का एसेट टर्नओवर रेशियो वो था 4 टाइम्स. ना उर्वशी इज सेइंग अगर उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो तो एसेट टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 4.68 टाइम्स. फर्दरमोर she could increase her debt to asset ratio to 50% with the balance in shares. मतलब इनिशियली जो उदय पैटर्न फॉलो करता था 30% बोरोइंग 70% शेयर्स का, उर्वशी बोलती है कि 50% बोरोइंग एंड 50% शेयर का पैटर्न चेंज करो. मींस शी इज ट्राइंग टू इंटरफेयर इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी आल्सो, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. इट इज अज्यूम दैट द इंटरेस्ट रेट वुड गो अप बाय 1%. 1% से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा. अच्छा चलो बताओ, प्रीवियसली इंटरेस्ट रेट कितना था? 10%. ये उदय जब 30% बोरो करता था तभी. उर्वशी जब ये बोरोइंग 50% करेगी तभी रिवाइज इंटरेस्ट रेट जो है वो 1% से बढ़ के हो जाएगा 11%. हमें करना क्या है? उदय और उर्वशी के चक्कर में हम लोग पीसने वाले हैं. पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि कंप्यूट द ईपीएस अंडर द उदय प्लान एंड उर्वशी प्लान. सो उदय के प्लान के हिसाब से ईपीएस कितना होगा? दैट इज अर्निंग पर शेयर. And same EPS we need to recalculate under Urvashi plan. Is Urvashi's perception right? उर्वशी ने जो भी सजेशंस दिए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है, वो राइट है या रॉन्ग है, ये सिर्फ तभी पता चलेगा जब आपका ईपीएस कंप्यूट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट आस्क्ड इन फर्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 2, उदय's पार्टनर. कहानी में आया और एक ट्विस्ट. इन दोनों के लाइफ में तीसरा भी एक बंदा इंटरफेयर कर रहा है एंड ही इज उदय's पार्टनर. डज नॉट थिंक दैट फिक्स्ड कॉस्ट वुड रिमेन कांस्टेंट अंडर उर्वशी's प्लान. उर्वशी ने बोला कि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उदय के पार्टनर को लग रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो उर्वशी के प्लान में सेम नहीं रहेगा, बट दे वुड गो अप बाय 15%. अच्छा, व्हाट वाज द फिक्स्ड कॉस्ट अर्लियर? उदय बोलता है कि फिक्स्ड कॉस्ट उसका है 1 करोड़ 20 लाख. उर्वशी बोलती है कि मेरे भी प्लान में 1 करोड़ 20 लाख रहेगा, लेकिन पार्टनर बोलता है अगर उर्वशी ने बताई हुई चीजें इंप्लीमेंट करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीमेंट होगा 15% का, मतलब फिक्स कॉस्ट चेंज करना पड़ेगा. इफ दिस इज द केस, शुड उदय शिफ्ट टू उर्वशी's प्लान बेस्ड ऑन EPS? Means one more time we need to calculate EPS by changing the fixed cost.
प्रपोजल्स वगैरह 2-3 नहीं है। एक उदय का प्लान है, एक उर्वशी का प्लान है जब फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, फिर रिवाइज उर्वशी का प्लान है जब फिक्स कॉस्ट 15% से बढ़ता है। फिर हमें फिर से डिसीजन लेना है। एंड पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टोटल रिस्क ऑफ द फर्म? टोटल रिस्क कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड लेवरेज. So in short, question is asking us to compute the combined leverage. So what is the effect on the total risk of the firm on switching from one plan to another? तो combined leverage अगर बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा, combined leverage अगर कम होगा तो रिस्क कम हो जाएगा. तो पहले हमें करना क्या है? Let's start with the point number 1. पॉइंट नंबर 1 में ईपीएस कंप्यूट करने के लिए बोला है. एनीवे, ईपीएस इज अगेन आस्क्ड इन पॉइंट नंबर 2. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन इन कॉलमनर बेसिस. और कॉलमनर बेसिस में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक प्यारा सा स्वीट सा इनकम स्टेटमेंट. सो दिस इज द हेडिंग, इनकम स्टेटमेंट. आई एम ड्राफ्टिंग 3 लाइन्स हियर. 3 लाइन्स बना रहा हूं, 3 कॉलम्स बना रहा हूं. एक कॉलम जो है वो है रिवाइज उर्वशीज प्लान का, दूसरा कॉलम जो है वो है उर्वशीज प्लान का, और तीसरा कॉलम जो है वो है उदय के प्लान का. चलो हम लोग इसको ड्राफ्ट करके इसका कर देते हैं नामकरण. नाम देना पड़ेगा. पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का. ये तो कोई भूलेगा नहीं, सब लोगों को पता रहता है एक ही चीज़, पर्टिकुलर्स. उसके बाद लिख रहा हूँ मैं उदय's प्लान. उदय's प्लान के बाद लिख रहा हूँ मैं उर्वशीज प्लान. And after writing Urvashi's plan, third column is for revised plan of Urvashi only. So ये 3 columns मैंने बना दिए. Try to understand. सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ quantity, that is number of units I am recording here. Number of units record करने तो उदय के हिसाब से अगर चेक करोगे क्वेश्चन में तो आपको मिलेगा हाउ मेनी शर्ट्स ही इज सेलिंग इन अ ईयर. अकॉर्डिंग टू उदय का प्रैक्टिस ही इज सेलिंग 1 लाख शर्ट्स. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट उर्वशी, देन उर्वशी इज सजेस्टिंग इफ उदय इज रेडी टू डिक्रीज द सेलिंग प्राइस, इसका वॉल्यूम ऑफ शर्ट जो है वो 30% से बढ़ेगा. मतलब यहां पे क्वांटिटी आ जाएगा 1,30,000 शर्ट्स. Once quantity is written, we can start with the income statement item. पहला लिखा मैंने sales at the rate of, पहले लिख देता हूं मैं 500 और स्लैश मार के लिख देता हूं मैं 450. सर दोन क्यों लिखा? 500 is the selling price under Uday's plan and 450 is the selling price under Urvashi's plan. तो 1 लाख शेयर्स अगर 500 में लिखते हो तो पहले तो कैलसी पे जीरोस देख के ना थक जाओगे आप लोग. कैलसी पे जीरोस जो है उसके हिसाब से आपका अमाउंट है 5 करोड़. और अगर सेकेंड प्लान में कैलकुलेशन करोगे तो 450 के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 5 करोड़ 85 lakhs. दीज आर द टोटल सेल्स अंडर उर्वशीज प्लान, एक्चुअल एंड रिवाइज. बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड रिवाइज प्लान? दोनों में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ रिवाइज प्लान में फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाना है. फिर सेल्स में से आप लोग माइनस करना वेरिएबल कॉस्ट which is constant under both the plans, and variable cost is 300 rupees. Anyway, per unit variable cost never changes, total variable cost always changes. So 1 lakh into 300 is 3 crores. Second is 3 crores 90 lakhs. Same in third column, 3 crores 90 lakhs. माइनस करना है. माइनस करने के बाद यू विल बी गेटिंग कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन इन फर्स्ट केस इज 2 crores. कंट्रीब्यूशन इन सेकेंड केस is 1 crores 95 lakhs.
same contribution 1 crores 95 lakhs here. इसमें से लेस होगा फिक्स्ड कॉस्ट बच्चों विच जनरली रिमेन्स कांस्टेंट. उदय के प्लान के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 1 crores 20 lakhs. उर्वशी ने बोला फिक्स्ड कॉस्ट उसके हिसाब से भी कांस्टेंट रहेगा 1 crores 20 lakhs. बट उदय's पार्टनर इज सेइंग अगर उर्वशी का जितना भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो 1 crores 20 lakhs का जो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है दैट विल गो अप बाय 15%. 15% से अगर इसे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 1 crores 38 lakhs. That's it. माइनस करने के बाद यू विल बी गेटिंग EBIT. EBIT इन फर्स्ट प्लान 80 lakhs, सेकेंड प्लान 75 lakhs, and last one is 57 lakhs. EBIT माइनस इंटरेस्ट. पहले कंटेंट्स लिख लेते हैं. इंटरेस्ट इज नॉट रेडीली गिवन एनीवेयर इन द क्वेश्चन. इंटरेस्ट के लिए वी नीड टू प्रिपेयर वन वर्किंग नोट. इंटरेस्ट के बाद आपको मिलेगा EBT. EBT में से माइनस करोगे आप लोग अमाउंट ऑफ टैक्स. टैक्स रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और टैक्स माइनस करने के बाद आ जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसी अर्निंग आफ्टर टैक्स को जब आप लोग डिवाइड करते हो नंबर ऑफ शेयर्स से, प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद फाइनली आपके पास जो अमाउंट बचता है दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ EPS जो पर शेयर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. चलो इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है उससे वर्किंग नोट करना पड़ेगा. सो हियर आई एम प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट. दिस इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स भी क्वेश्चन में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है. इफ यू चेक द गिवन इंफॉर्मेशन, कंपनी के पास जितना भी इनका कैपिटल है उसका ब्रेकअप अवेलेबल है. लेकिन कैपिटल से पहले इन्होंने लिखा है कि पहले प्लान में लाइक उदय का एक एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया है दैट इज सेल्स टू एसेट्स रेशियो इज 4 times. सी व्हाट इज गिवन. इन्होंने बोला पहले सेल्स टू एसेट, ये जो रेशियो है दैट इज 4 times. That means sales divided by asset, और assets का मतलब होता है total assets is equal to 4 times. Now उदय के केस में फर्स्ट प्लान में सेल्स इज अवेलेबल एंड टोटल सेल्स अगर चेक करोगे आपके सॉल्यूशन में ही मिलेगा टोटल सेल्स इज 5 crore रुपीज. सब्सटीट्यूट कर दो 5 crores divided by total assets is equal to 4:1. If you further solve this, total asset का वैल्यू मिल जाएगा. Total asset is 1 crores 25 lakhs. Now try and understand this. Total asset में से एक पैटर्न is given. इसमें से उदय का पैटर्न है. उदय एक प्रोपोर्शन यूज करता था जिसमें 30% का डेट होता था और बचा हुआ जो 70% है वो इक्विटी से रेज होता था. बराबर है ना. दैट इज योर शेयर्स. अगर डेट यूज होता है तो 1 crores 25 lakhs इंटू 30% कंप्यूट करोगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा 37,50,000 का फिगर. बराबर है. और यही चीज माइनस करोगे तो यहां बचेगा 87,50,000 का फिगर. सर इसके साथ करना क्या है.
ये जो डेट दिख रहा है आप लोगों को, इस डेट के ऊपर इसने दिया है 10% का इंटरेस्ट, मतलब आप लोगों को डेट पे एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो इस केस में इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट, इसका अगर 10% कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा आप लोगों का 3,75,000। बच्चों समझ रहे हो ये क्या चल रहा है? दिस इज वॉट आई एम कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी ये जो बचा हुआ कैपिटल है ये 100 रुपीज के शेयर्स से इसने रेस किया है, 100 रुपीज के शेयर्स की बात चल रही है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है तो इस अमाउंट को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मुझे मिल जाएगा। इस केस में नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 87,500। परफेक्टली अंडरस्टूड? पक्का? एसेट टर्नओवर रेशियो मैंने यूज किया, और ये एसेट टर्नओवर रेशियो मैं किसके प्लान के लिए यूज कर रहा हूं? दिस इज फॉर उदय प्लान। अगर मैं यही चीज उर्वशी के लिए यूज करता हूं तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन उर्वशी का सेक्शन? उर्वशी के सेक्शन में पहले तो चेक करना उर्वशी का सेल्स टू एसेट रेशियो कितना है। तो यहीं पे एक मैं लाइन ड्राफ्ट कर देता हूं और लिख देता हूं मैं सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इज इक्वल टू, जरा चेक कर ले लो, यहाँ पे है आप लोगों को उर्वशी के प्लान में दिया हुआ इंफॉर्मेशन, एंड इट इज 4.68 टाइम्स। सो इट इज 4.68 डिवाइडेड बाय 1। सब्सटीट्यूट उर्वशी का सेल्स, इसमें आपने उर्वशी का सेल्स कंप्यूट किया विच इज 5 करोड़ 85 lakhs। सो आई एम सब्सटीट्यूटिंग दैट 5 करोड़ 85 lakhs divided by total asset is equal to 4.68:1। यही आगे सॉल्व करोगे तो टोटल एसेट्स मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इट इज 125 lakhs। सेम वैल्यू बट ब्रेकअप डिफर हो जाएगा। सेम वैल्यू के हिसाब से इसमें अगर डिवाइड करोगे तो एज पर हर प्लान 50% इज डेब्ट एट द रेट ऑफ 11%, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा 1% का इंटरेस्ट देने की सोची है, और बचा हुआ 50% है, दैट वन इज इक्विटी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन विल रिमेन सेम। आपका जो 50% है 1 करोड़ 25 lakhs इंटू 50% करोगे तो ये हो जाएगा 62,50,000, और इस पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% विच इज इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट। यहां पे बचेगा अगेन 62,50,000। This is total equity capital. Now try to understand. 62,50,000 into 11% करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट हियर, एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 6,87,500 फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ऑफ उर्वशी एज वेल एज रिवाइज उर्वशी's प्लान। और जब इसे फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आपके 62,500 शेयर्स। दैट्स इट। ये दोनों वर्किंग नोट का यूज क्या है? इन दोनों वर्किंग नोट में इंटरेस्ट का अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर, इंटरेस्ट का अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स मिल चुका है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन इन फर्स्ट प्लान इज 3,75,000। इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्लान is 6,87,500, which will remain constant in third column also. 6,87,500 is not the separate plan, it is the only change in fixed cost वाला plan. That's it. माइनस करना है आप लोगों को 80 lakhs में से, जब आप माइनस करोगे 3,75,000, you will be getting 76,25,000 का फिगर, इंटू 40% कर दो, आप लोगों को मिलेगा 30,50,000। जब माइनस कर दोगे तो माइनस करने के बाद बचेगा 45,75,000 का फिगर। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। इसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स से। नंबर ऑफ शेयर्स फॉर फर्स्ट ऑप्शन 87,500 डिवाइड करना 87,500 से, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इज योर EPS विच इज 52.29 रुपीज पर शेयर। दिस इज फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम अगर आप लोगों को कंप्लीट करना है तो 75 lakhs का जो बचा हुआ था EBIT, उसमें से माइनस करना 687,500 का इंटरेस्ट, बैलेंस विल बी 68,12,000
500 into 40% will give you टैक्स का वैल्यू 27,25,000 माइनस करने के बाद बचा हुआ वैल्यू होगा आपका 40,87,500 डिवाइड करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स है इसके 62,500। सो डिवाइड कर रहा हूं मैं 62,500 से, आप लोगों का वैल्यू हो जाएगा 65.4। दिस इज उर्वशीज ईपीएस। नेक्स्ट ईपीएस कैलकुलेट करना है आप लोगों को 57 lakhs minus 6,87,500 बच्चों, you will be getting balance of 50,12,500 into 40% is 20,05,000. When you deduct it, you will get 30,07,500. इसे डिवाइड करना है आप लोगों को 62,500 नंबर ऑफ शेयर्स से। 62,500 से डिवाइड करने के बाद बचेगा आप लोगों का वैल्यू यहां पे 48.12। दैट्स इट, ऑल EPS are calculated. Now once this EPS is calculated, now what is asked in the question, let's discuss that. Compute the EPS under the Uday and Urvashi plan. Computed. Is Urvashi's perception right? उर्वशी का परसेप्शन सही है क्या? यस, 100% हर परसेप्शन इज राइट, बिकॉज अगर उसके इंस्ट्रक्शन और सजेशन के हिसाब से चलोगे तो इंक्रीमेंटल ईपीएस बढ़ेगा। जितना उदय अर्न कर रहा था उससे ज्यादा वो अर्न कर सकता है, मींस रिवाइज ईपीएस हायर होने के कारण उसका परसेप्शन राइट है। इसीलिए जो कोई नया लाइफ में आके सजेशन करेगा तो थोड़ा सुना करो। उसके बाद इन्होंने बोला है कि उदय पार्टनर डज नॉट थिंक वाला, जो तीसरा कॉलम है, इसने बोला शुड उदय शिफ्ट टू उर्वशीज प्लान बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर। देख लो, अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ता है बच्चों तो 48.12 हो जाएगा, जो आप लोगों के एक्चुअल अर्निंग से भी कम है। एक्चुअल अर्निंग से कम होने के कारण इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है नहीं शिफ्ट होना चाहिए अगर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता है, शिफ्ट होना चाहिए अगर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है। लास्ट में बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टोटल रिस्क, मतलब आपको कैलकुलेट करना है कंबाइंड लेवरेज। चलो लेट्स कैलकुलेट कंबाइंड लेवरेज हियर ओनली। कंबाइंड लेवरेज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। डायरेक्टली यू कैन कंप्यूट ऑन योर calculators. It's 2 crores in first plan divided by your EBT is 76,25,000. It's 2.62. Second combined leverage is 1 crores 95 lakhs divided by EBT of 68,12,500. This will give you 2.86 figure. And last computation is contribution 1 crores 95 lakhs divided by your EBT is 50,12,500 is 3.89. This is your combined leverage. See, if you check all the plans, degree of risk, total risk, combined risk, overall risk is increasing according to the plan. पहले कॉलम में degree of combined leverage is lower, बट अगर दूसरे प्लान में शिफ्ट होते हो नो डाउट अर्निंग बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ आपका रिस्क भी बढ़ रहा है। यू कैन एनालाइज इट। और तीसरे प्लान में तो जाना बेवकूफ़ी है, उसमें आपका अर्निंग भी कम हो रहा है, उसके साथ साथ रिस्क भी बढ़ रहा है। इसीलिए आपके सजेशन में सिर्फ उर्वशी का प्लान होना चाहिए, दैट टू विदाउट इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। ये सारे कमेंट्स आपको लास्ट में पैराग्राफ वाइज या पॉइंट वाइज लिखने कंपलसरी होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन perfectly. Revise this question before examination. Once again, this question is very, very important and covers almost all the concepts. Hope you have understood it perfectly. Thank you very much.